talking about budgeting, the government budgeting. And under this topic, we have already done many of the concepts regarding the basics, the meaning of budgeting, and the components of budgeting. Then after we discuss about the whatever the aims of budgeting and what are the statements comes under the budgeting. Yesterday we discussed about the basic process of budgeting, like how the budget or any budget of any country, because basically we're talking about Indian budgetary. So how the budgetary process comes up in India, like if we're starting off with some proposal will be given, then we will talk about the proposal in the market into the parliament only, then we will discuss about that, they'll find out some grants will be assured about it, then grants will be provided to them, then the final bill will be published into the Lok Sabha. So this was the process, like how the budget will be processed into any parliament, and what was the time of presenting, how it comes up. After 2016, we have just merged the railway budget with the union budget that we have also added in this. Now today we will talk about actually the components of the budget. As we know, the budget comes up with the two basic things. Budget का meaning क्या है? The income and expenditure plan, like how much we are getting and how much we are spending. तो उन दोनों के बीच का बैलेंस कैसे क्रिएट करना है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स ऐड होंगे, खर्चा कहाँ कहाँ पे हो रहा है, इनकम कहाँ कहाँ से आ रही है, उन दोनों को मैनेज कैसे करना है, that we will discuss. Before going to the deep of that, as we have already done into the fiscal policy, we have already done how much expenditure has been done. हम पहले ही fiscal policy में चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स और गवर्नमेंट की इनकम क्या होती है. बट यहाँ पर हम गवर्नमेंट के उन्हीं इनकम और उन्हीं एक्सपेंडिचर्स को दो डिफरेंट अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करेंगे. अर्लियर इफ आई आस्क यू पीपल व्हाट आर द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, गवर्नमेंट खर्चा कौन करती है? ओके, taxes the income of a source of government. Welfare schemes or infrastructure or gifts and grants given to the other nations. Unilateral transfers like pension, scholarships, gifts. These all are the expenditures of the government. What are the sources of the government? Income source of the government. She'll answer. Come on. If it is not an income tax, income from taxes only, what kind of other income can government can generate? अगर गवर्नमेंट के पास सिर्फ इनकम का सोर्स सिर्फ टैक्स ना हो, तो और कौन सा सोर्स है गवर्नमेंट के पास इनकम लेने का? Public enterprises, the profits earning by the public enterprises. Some dividends can be earned from the public enterprises. What else? Same as, हाँ जी, very good, very nice. Some fines, some penalties, some fees, that is being stamp duties. ये सारे भी गवर्नमेंट के इनकम का सोर्स है, ठीक है जी. And sometimes the other countries provide some grants, some other countries provide some subsidies to us. That is also part of income of government. So we can talk about total. हमें पहले पता होना चाहिए कि total income और total expenditure है क्या. इनकम का मतलब वो सारे सोर्सेज जहाँ जहाँ से हमें इनकम मिल सकती है गवर्नमेंट को, एंड वो बोले सारे सोर्सेज जहाँ पे इनकम अपना गवर्नमेंट अपना स्पेंड करती है. As we are talking about the budgetary, we are talking about a financial statement of India as for a 1 year, then we need to talk about each and every kind of expenditure and each and every kind of income received from there, because then only the government will got to know कि आपको कितना इनकम आया और उसमें से कितना पैसा आपने खर्च करना है और कहाँ कहाँ पे खर्च करना है. So that is very much important to understand the basic concepts of income and expenditure of the government. So for that sake, we are basically dividing into two parts, and I'll make a one chart, and after that हम उसको एक एक पॉइंट को उठाकर उसके डिस्कशन को लेके आएंगे. Done? So we are talking about the government budget. That is the combination of the two type of budget. That one is the revenue budget and second is a capital budget. So the revenue. Do I need to inform them? Because it's gonna fall off. So we have two kind of things are there. Okay. Revenue budget and the capital budget. Revenue budget stands for the income received to the monetary, the current account only. अभी बात करते हैं इसके बारे में. So important to know about revenue budget.
revenue budget and the capital budget. Okay, two types of budgets are there and इन दोनों का combination हमारा total budget है. Done? अभी दोनों के बीच में first of all difference क्या है? Revenue stands for the monetary values and capital stands for fixed assets. Some capital formation is being done over there. आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है. इन्वेस्टमेंट किस में होता है? कुछ एसेट्स में, कुछ मशीनरीज में, कुछ इक्विपमेंट्स में, कुछ प्रोजेक्ट्स में. वो आपका इन्वेस्टमेंट है. आपको वो फ्यूचर टाइम पीरियड में इनकम जनरेट कर देगा. लॉन्ग टर्म प्रोसेस है. ये आपका शॉर्ट टर्म प्रोसेस है. आपने आज जितना पैसा अर्न किया और कितना पैसा खर्च कर दिया इन कैश. वी टॉकिंग अबाउट करंट अकाउंट की बात कर रहे हैं और उसमें आप बात कर रहे हैं हमारे समवेयर समहाउ वी टॉक अबाउट कैपिटल अकाउंट. वी हैवंट डन येट अबाउट द बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड. हमने अभी नहीं किया बट उसका ही एक छोटा सा पार्ट हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. वी हैव टू टाइप ऑफ अकाउंट्स. एक होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट. दोज हु आर फ्रॉम द कॉमर्स बैकग्राउंड दे मस्ट बी नोइंग अबाउट देयर इज अ बैलेंस शीट. बैलेंस शीट होती है जो आर्ट्स बैकग्राउंड से है दे कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द वे पॉइंट लाइक आपके घर का बजट बन रहा है. एक साइड पर आप सारे आने वाली इनकम के बारे में सोर्स लिखेंगे. एक साइड आप जितना भी इनकम हमारा खर्च होने वाला है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उन दोनों का जो रिजल्ट होगा वो आपका बजट बन जाएगा, है ना. तो आप क्या चाहते हैं हमेशा कि जो भी आपकी इनकम है वो आपके एक्सपेंडिचर के बराबर हो. सेविंग्स हो जाए तो गुड है बट लॉसेस नहीं होने चाहिए. शुड नॉट हैव अ मोर एक्सपेंडिचर एंड लेस इनकम एंड यू हैव टू बोरो समवन कि वो अपने खर्चे को पूरा करने के लिए आपको किसी से बोरो करना पड़े. सो वो जो डिफरेंसेस हैं दैट शुड बी इक्वलाइज्ड. वी वांट बैलेंस शुड बी इक्वल. हमारे क्रेडिट एंड डेबिट साइड जो है वो बराबर हो. जितना पैसा जा रहा है और जितना पैसा आ रहा है वो बराबर हो. तो इसी तरह जब हम ये हमारे घर का अकाउंट था उसी तरह एक कंपनी का अकाउंट हो डेबिट एंड क्रेडिट साइड. उसी तरह एक नेशन का अकाउंट बनता है. पूरे इंडिया का अकाउंट बनता है. पूरे इंडिया को जहाँ जहाँ से इनकम मिल रहा है और पूरे इंडिया को जहाँ जहाँ से पैसा जा रहा है उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी बजट में क्रिएट की जा सकती है. लेकिन वो एक क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट. पेमेंट का बैलेंस बनाने का एक स्ट्रक्चर बुक कीपिंग सेंस. तो जितनी इनकम आ रही है और जितनी इनकम जा रही है उसका एक लेखा जोखा एक राइट अप इज कॉल्ड योर बैलेंस ऑफ पेमेंट. दे सेड दैट अब इनकम कहाँ से आ रही है? इनकम दो अकाउंट से आती है. करंट अकाउंट से आती है और कैपिटल अकाउंट से आती है. अब आपको पता होना चाहिए करंट अकाउंट क्या है. करंट अकाउंट वो सिचुएशन होती है जो हमारी रियल सेंस में होती है. रियल सेंस मतलब अब इंडिया को इनकम कहाँ से आ रही है? इंडिया को आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली द टेरिटरी ऑफ इंडिया इन कमिंग टू द पार्लियामेंट ओनली. हम सिर्फ टैक्स और नॉन टैक्स इनकम की बात नहीं कर रहे हैं. और कहाँ से इनकम आ सकती है? एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से. जब हम कोई चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें पैसे मिलते हैं. हम कोई सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं, हम बीपीओ केपीओ सेक्टर में जॉब करते हैं तो वी गेट इनकम आउट ऑफ इट. सो हमारे गुड्स और सर्विसेज को देने से कुछ इनकम मिलती है. उसी तरह वहाँ से हम गुड्स एंड सर्विसेज मंगवाते हैं तो यहाँ से पेमेंट जाती है. ठीक है कुछ. अब ये क्या है? एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स. किसका? गुड्स का और सर्विसेज का. प्लीज कीप इट इन माइंड. ओनली वन डिफरेंस. हम बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक टॉपिक प्रॉपरली करेंगे बट आपको सिर्फ उसमें से कट शॉर्ट एक रिजल्ट्स निकाल के लेके आना चाहती हूँ यहाँ पर. बैलेंस ऑफ ट्रेड मीन्स सिर्फ और सिर्फ ट्रेड का बैलेंस. कितना एक्सपोर्ट किया गुड्स का और सर्विसेज का, कितना एक्सपोर्ट किया इंपोर्ट किया गुड्स एंड सर्विसेज का. दिस डिफरेंस इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड. बैलेंस ऑफ पेमेंट एक बड़ी अमाउंट है. अब दूसरी कंट्री के साथ सिर्फ आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो नहीं करते हैं और क्या कर सकते हैं? FDIs, FIIs, गोल्ड इन्वेस्टमेंट, एसेट्स इन्वेस्टमेंट, बॉन्ड्स, शेयर, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. हम बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करते हैं फॉरेन कंट्रीज में. फॉरेन कंट्री की MNCs हमारी कंट्री में आई, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया ना यहाँ पर. तो हम भी फॉरेन कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, फॉरेन कंट्रीज भी हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं. हम भी गोल्ड बाय करते हैं, वो भी गोल्ड बाय करते हैं. हम भी एसेट्स खरीदते हैं, वो भी एसेट्स खरीदते हैं. हम भी उनके शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो भी हमारे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं. तो हमारा पैसा सिर्फ ट्रेड के थ्रू नहीं जाता आता और बहुत सारे कारणों से भी आता जाता है. अगर उन सबको भी छोड़ दिया जाए तो हम गिफ्ट लेते हैं फॉरेन कंट्री से, हम ग्रांट्स लेते हैं, हमें कोई कंसेशन मिल जाता है, हम बोरोइंग करते हैं. फॉरेन कंट्री हमसे ग्रांट लेती है. हम कोविड टाइम में बहुत सारे कंट्रीज को हमने ग्रांट्स दिया, हमने बहुत सारे कंसेशंस दिए. तो अल्टीमेटली इकोनॉमी का पैसा बहुत सारी जगह से आ रहा है. पहला तो क्या आया? ट्रेड का बैलेंस. उसको क्या बोला? बैलेंस ऑफ ट्रेड. वो हमारी एक रियल पिक्चर होती है. हम जबरदस्ती किसी को नहीं कह सकते कि आप हमसे एक्सपोर्ट करके ले जाएं, है ना, कि बैलेंस ऑफ ट्रेड बराबर करना है तो आप हमसे एक्सपोर्ट कर लो, हमारे पास पैसे आ जाएंगे, हम बराबर हो जाएंगे. वी कैन नॉट.
It cannot be done by or deliberately. It is done autonomously. ऑटोमेटिक होता है. आपने जितना एक्सपोर्ट किया, जितना उन्होंने एक्सपोर्ट किया, उसके बीच का डिफरेंस आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड है. उन्होंने 500 रुपये का सामान भेजा, हमने 800 रुपये का सामान मंगाया. फायदा है कि नुकसान? 200 रुपीज़ का या 300 रुपीज़ का हमारा डेफिसिट चल रहा है. गेटिंग माय पॉइंट? ये हो गया करंट अकाउंट जो रियल पिक्चर दिखा रहा था. कैपिटल अकाउंट कहता है हमने लोन ले लिया, हमने गोल्ड बाय कर लिया, हमने एसेट्स खरीद ली, हमने पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कर लिया, हमने और तरह की इन्वेस्टमेंट जो विजिबल नहीं थी. वो क्यों की? हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट को इक्वल करना था. हमने कहा नहीं जी, इस कंट्री का कोई बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो खराब नहीं है, ना हमें घाटा है ना हमें फ़ायदा, में इक्वल है. जबकि घाटा हो रहा है. घाटा कहाँ हो गया? बैलेंस ऑफ ट्रेड में घाटा हो गया. करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट. करंट अकाउंट में नुकसान हो गया, नेगेटिव हो गया. क्यों? हमारे पास पैसे आ तो 200 रुपीज़ है, जबकि जा 400 रुपीज़ है. तो यहाँ पे माइनस का 200 का लॉसेस चल रहा है. ठीक है, हमने यहाँ पर कहना चाहिए हमारा सब कुछ इक्वल है. जितने पैसे आए, जितने पैसे गए, आने का टोटल और जाने का टोटल हमेशा बराबर है. हम ये कहना चाहते हैं. तो अब यहाँ तो नुकसान हो गया. कितने का? 200 का नुकसान है. हम यहाँ पर ना 200 का पॉजिटिव दिखा देंगे ताकि यहाँ पे नल एंड वॉइड जीरो हो जाए. ये हम जानबूझ के करते हैं. दैट इज कॉल्ड करंट अकाउंट. दिस इज कॉल्ड कैपिटल अकाउंट. दिस इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिव नेम ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग. ऑटोनोमस का मतलब जो ऑटोमेटिक हो रहा है, अकोमोडेटिंग जो हम जानबूझ के कर रहे हैं. हम क्या कहेंगे? हमने किसी कंट्री ने हमारी कंट्री में आके 200 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर दिया. हमने कुछ नहीं किया. यहाँ पे 200 का फायदा हो गया, यहाँ पे 200 का नुकसान था, जीरो हो गया. तो कैपिटल अकाउंट ना जानबूझ के किया जाता है इकोनॉमी को इक्वलाइज करने के लिए. और ये जो होता है सिर्फ और सिर्फ बुक कीपिंग सेंस के लिए होता है, सिर्फ लेखा जोखा बनाकर रखने के लिए होता है कि कोई लेना देना कुछ नहीं है, नुकसान कुछ नहीं है, इक्वलाइज्ड है. क्योंकि इसमें तो आप गड़बड़ नहीं कर सकते ना. ये तो विजिबल ट्रेड की बात कर रहा है. तो ये कौन सा होता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड. ये होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट. तो अल्टीमेटली हमने इसमें से क्या निकालना है कि ये वाली बात तो कौन सी है आपकी? मॉनेटरी. पैसा कितना आया कंट्री में, कितना पैसा कंट्री से गया, रियल सेंस. और ये कौन सा है? झूठा मूठा. दैट इज अ कमोडिटी. वी आर क्रिएटिंग दैट अकाउंट जस्ट टू इक्वलाइज द बैलेंस ऑफ पेमेंट. बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक करने के लिए हम इस अकाउंट में फालतू की एंट्रीज करते हैं. ठीक है, इट्स नॉट एक्चुअली फालतू की, बट इट इज बीइंग डेलिबरेटली की जाती है जानबूझ के. अभी जब हम ये टॉपिक करेंगे देन वी विल डिस्कस मच मोर अबाउट इट. इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं. मैं आपको सिर्फ रफ वर्क बता रही हूँ क्योंकि ये हमारा बजट है. पैसे आने और पैसे जाने. अभी हम फॉरेन के पैसे आने और फॉरेन के पैसे जाने की तो बात नहीं कर रहे. हम घर के पैसे की और घर पे जाने की पैसे की बात करें. कितना पैसा इंडियन इकोनॉमी एक साल में इकट्ठा करेगी और उस एक साल के पैसे में से कितना पैसा कहाँ कहाँ खर्चेगी. दैट इज बेसिकली अ बजट. सो दिस इज, ये क्या है? उन्होंने हमारी कंट्री में 200 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया. उन्होंने हमारी कंट्री में 200 रुपए के फाइनेंशियल बॉन्ड सिक्योरिटीज शेयर खरीदे. एसेट है ना, कोई चीज़ तो नहीं आई. इन्वेस्टमेंट की, मशीनरी खरीदी, टूल्स खरीदे. सो दैट इज कॉल्ड योर हमारा कैपिटल अकाउंट. देखो कैपिटल के नाम से ही कैपिटल है ना. कैपिटल का मतलब क्या है? एसेट्स. कैपिटल एक्युमुलेशन, इन्वेस्टमेंट. ठीक है, तो ये मैंने आपको जो बताया उसका मेजर ऑब्जेक्टिव यही था कि यू मस्ट बी नोइंग ऑफ व्हाट इज द करंट अकाउंट एंड द कैपिटल. दिस इज द करंट अकाउंट, दिस इज कैपिटल अकाउंट, दिस इज अबाउट द मॉनेटरी वन एंड दिस इज फॉर द एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, बिल्डिंग्स, स्टोरेज एंड सो ऑन. गेटिंग अ पॉइंट? चलिए अभी हम बात करते हैं इसके फर्दर सब कंपोनेंट्स की. सो हमने जो वर्ड लिखा है वो हमने यहाँ पर भी बजट लिखा है, हमने यहाँ पर भी बजट लिखा है. इसका मतलब आपके माइंड में हाफ ऑफ द थिंग शुड बी क्लियर. इट्स अगेन रिवेन्यू का आना जाना, इट्स अगेन कैपिटल का आना जाना. सो हियर वी आर डिवाइडिंग इंटू टू पार्ट्स फर्दरमोर. दैट इज revenue, receipts and revenue same as capital receipts,
लेट्स इफ यू आर गेटिंग दिस थिंग, अगर ये अच्छे से समझ में आ जाता है, हाफ ऑफ द स्टोरी इज क्लियर। आपको आधे से ज़्यादा चीज़ें बजट की जो है वो क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि बजट के अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो यही वाला है। इसी में से हमारे डेफिसिट वगैरह निकल के आएंगे, वो आपके मेन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर देंगे। लिसन, अब हम रिवेन्यू रिसिप्ट्स एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करेंगे। रिसिप्ट्स का मतलब जो मनी आएगी, एक्सपेंडिचर का मतलब जो मनी जाएगी। Now they said that let's talk about, okay, further if we are dividing in this money part of the further part, receipts का मतलब है जो इनकम आ रही है, वो इनकम कहाँ से आ रही है? गवर्नमेंट को पैसे कहाँ से मिल रहा है? It is coming from tax income and non-tax income। ठीक है जी, अब इसको फिर से डिवाइड करेंगे हम लोग भी, अभी सिर्फ ये बात करेंगे। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का पैसा खर्च कहाँ हो रहा है? विल टॉक अबाउट इट। हाँ जी, हाँ, वी विल डिस्कस बिकॉज इट्स बीइंग डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वी हैव टू डिफाइन कि कौन सा खर्चा कहाँ पर आना है, अभी हमें नहीं पता। कैपिटल रिसिप्ट्स, गवर्नमेंट को पैसा मिल कहाँ से रहा है? फिर से टैक्स और नॉन टैक्स से मिल रहा है, ठीक है? नहीं, ओके। एसेट्स, अभी ये देखो, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए था यहाँ पर कि यहाँ जो पैसा है वो कैश में मिलने वाला नहीं है। मिलेगा, एसेट्स क्रिएट होंगी, कुछ ना कुछ मिलेगा, कुछ ना कुछ जाएगा देश से, बट व्हाट दैट, इट कुड बी डिविडेंड, वो यही वाला नहीं हो गया फिर डिविडेंड तो। चलिए, अभी कंफ्यूज नहीं होते, यू आर नॉट गेटिंग द आंसर, लेट्स टॉक अबाउट दिस। हमने कहा रिवेन्यू रिसिप्ट्स। रिवेन्यू रिसिप्ट्स का मतलब है वो वाली सारी की सारी इनकम जो हमें मनी जनरेट करके देगी, मनी जनरेट करके देगी, जो ना तो मैंने आपसे कल भी बोला था, टू वर्ड्स वी नीड टू कीप इट अप इन माइंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रिवेन्यू रिसिप्ट्स एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट्स का मतलब होता है कोई चीज क्रिएट होना, लायबिलिटी का मतलब होता है कोई देनदारी जो बनी हुई है, वो कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, देनदारी। और एसेट का मतलब है उससे कोई पैसा जनरेट हो रहा है। दे सेड दैट व्हेन दे डू नॉट, बस आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है, एंड इट डज, दोनों के बीच का डिफरेंस सबसे बड़ा यही। इट डू नॉट decrease the assets, it do not create any liability। दो वर्ड्स को ध्यान रखना है आपने, it do not create the assets, it do not decrease the liability, it does create the assets, it does decrease the liabilities। वो दोनों को करता है, ये दोनों को, एसेट की बात आ गई ना, तो वो एसेट्स क्रिएट करेगा, वो लाइबिलिटीज को रिड्यूस करेगा। ये ना तो एसेट को क्रिएट करेगा ना लाइबिलिटी को क्रिएट करेगा। ना तो आपके कोई देने वाले पैसे कम होंगे, लाइबिलिटी है ना, आपके पास 5 करोड़ रुपए का लोन है, पैसा आ गया, पैसा चला गया, टैक्स से पैसा आ गया, टैक्स से पैसा चला गया, कोई लाइबिलिटी थोड़ी खत्म हुई, वो तो वैसे की वैसे खड़ी है। ना आपने टैक्स से पैसा आया और आपने खर्च कर दिया लोगों के वेलफेयर के ऊपर, ना कोई एसेट बनी ना कोई कुछ बना। तो अल्टीमेटली इट डू नॉट क्रिएट एनी एसेट्स, इट डू नॉट डिक्रीज एन लायबिलिटी। सो यू कैन राइट डाउन इट डज नॉट और डू नॉट इंक्रीज इन एसेट और क्रिएट एन एसेट। It do not create any asset, it do not decrease the liability। ना तो ये क्रिएट करता है ना ये डिक्रीज करता है, इट कैन नॉट। अगर आपको ये बात समझ में आ जाएगी तो यू विल एबल टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी इजीली। नाउ फर्दर वी आर सेइंग डू नॉट क्रिएट और इफेक्ट ऑन द एसेट्स ऑफ लायबिलिटी। ये गवर्नमेंट की एसेट और लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं डालता। लेट्स टॉक अबाउट रिसिप्ट्स। गवर्नमेंट को पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है? टैक्स से आ रहा है, नॉन टैक्स से आ रहा है। टैक्स कौन कौन से हैं हमारे, कल हमने बात की थी। इसको अगर आप चलो 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहते हो तो फिर से कर दीजिए। डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स कौन से है, थोड़ा सा शॉर्टफॉल हो गया प्लेस का। डायरेक्ट टैक्सेस आर इनकम टैक्स और कॉर्पोरेशन टैक्स, एक्साइज ड्यूटीज एंड सो ऑन। देयर आर
and non-tax incomes are non-tax indirect taxes are you can say GST is an example. अभी तो सारे ही टैक्स जो उसी के अंदर आ गए. So GST is a big example of non. वैसे तो वेल्थ टैक्स को भी अब नॉन GST का हमें उसने इनडायरेक्ट टैक्स कह दिया है, बट अभी नहीं, इसको हम नहीं लिखते हैं, हम इसको लिखते हैं GST is only the example of this. Now ये तो हमारी हो गई इनकम के सोर्स. नॉन टैक्स इनकम कहाँ से आती है? फंड्स कोई देते हैं हमें, ठीक है, और कुछ फीस, फाइन्स, हमें कोई पेनल्टी पड़ती है, चलान कटता है हमारा, हम जब स्टैम्प ड्यूटीज़ बाय करते हैं, हमें जब घर बनाना होता है तो हम जो स्टैम्प पेपर्स के ऊपर उस पर वो करवाते हैं, नोटरी के साइन कराते हैं, वो स्टैम्प पेपर्स गवर्नमेंट की, वो स्टेट गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं होती. चलो स्टिल वी आर टेकिंग फॉर द इनकम का सोर्स तो है ना, आपको पता होना चाहिए. सो दैट ऑल आर द पार्ट ऑफ द नॉन टैक्स इनकम ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट को डिविडेंड, गवर्नमेंट ने जो अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है किसी BHEL में, ऑयल कॉर्पोरेशन में, तो उससे जो प्रॉफिट मिल रहा है उस प्रॉफिट का हिस्सा गवर्नमेंट की इनकम का सोर्स है. लेकिन टैक्स नहीं है वो, लेकिन गवर्नमेंट की इनकम का सोर्स है. सो यू कैन राइट डाउन द नॉन टैक्स इनकम्स आर प्रॉफिट्स, डिविडेंड, प्रॉफिट किसके? पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के, ठीक है जी, और डिविडेंड जो आपको मिल रहा है, एंड इंटरेस्ट रेट पेमेंट सबसे बड़ा. अगर आपने कोई लोन दे रखा है उससे आपको इनकम मिल रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपका क्या हो गया? आपकी इनकम का सोर्स हो गया. इससे अलावा जो हमने अभी बात की, सम फीस, सम फाइन, सम पेनल्टीज, ये सारी इनकम की गवर्नमेंट का सोर्स है. हमारे पे जो ये चलान कट रहे हैं, है ना, वो पेनल्टी है, एक तरह से वो भी इनकम गवर्नमेंट की आती है. हमारे पे जो फाइन लगते हैं, अगर आपने इनकम टैक्स पे नहीं किया, या आपने कोई और चीज़ का रिप्लाई गवर्नमेंट को नहीं करते हैं, या आप इलेक्ट्रिसिटी सेम टाइम पे नहीं करते हैं, तो जो आपके ऊपर एक्स्ट्रा फाइन जो गवर्नमेंट चार्ज करती है. फीस ऑलरेडी एनी you have to take a connection, you have to pay a fees if you want to. This toll, basically tolls are like now in the private sector hand, but earlier it was in part of the government income only. क्योंकि गवर्नमेंट ने तो उसके ऊपर पैसा खर्च किया ना, सड़क बनवाने के लिए टेंडर दिया आपको, टेंडर के थ्रू आपने उस चीज़ को ऑन किया, और उस टेंडर के थ्रू आप इनकम अर्न कर रहे हो. पहले आपने गवर्नमेंट को टेंडर दे दिया, अब उस टेंडर से आप पैसा कमा रहे हो, तो समवेयर समहाउ वो एक तरह से गवर्नमेंट की इनकम का ही पार्ट हो गया. तो ये सारे जो है हमारे नॉन टैक्स इनकम का सोर्स होते हैं. आई रिपीट, ये ना तो आपकी एसेट्स क्रिएट करते हैं, ना ही आपकी लायबिलिटीज को कम करते हैं. यू कैन टेक एनी पार्ट एंड यू कैन चेक इट आउट. GST से क्या कोई एसेट क्रिएट हुई? फीस और फाइन जो गवर्नमेंट को मिला, क्या उससे कोई लायबिलिटी कम हुई? आप लायबिलिटी का मतलब समझ रहे हैं ना, हमारी जो देनदारियां होती हैं वो लायबिलिटीज होती है. हमने फीस फाइन आपसे इकट्ठा कर लिया, तो मेरी कोई देनदारी तो कम नहीं हुई ना, जो मैंने लोन लिया वो वैसे का वैसे ही खड़ा है, ठीक है. तो ये सारा पार्ट क्या है, जो रिसिप्ट्स तो हैं, मगर ये रिसिप्ट्स हमारी लायबिलिटीज को इसको कम नहीं करती, हमारे एसेट्स को क्रिएट नहीं करती. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एक्सपेंडिचर पार्ट. गवर्नमेंट का रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ होता है, गवर्नमेंट खर्चा कहाँ करती है? गवर्नमेंट खर्चा कहाँ करती है? स्कीम्स के ऊपर, और कहाँ खर्चती है? Salaries of the government employee, that is a part of the same thing. गवर्नमेंट जो सैलरीज आपको दे रही है, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, आप डिफेंस में हैं, आप रेलवेज में हैं, उनको जो इनकम मिल रही है वो गवर्नमेंट का खर्चा है, लेकिन उससे कोई एसेट नहीं क्रिएट होगी, उससे गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी खत्म नहीं होगी, आपको हर महीने फिर देने पड़ेंगे. इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, यू हैव टू डन. आपको ये भी कंटिन्यू है और ये भी कंटिन्यू है, ये आपको देना ही पड़ रहा है. गवर्नमेंट को सैलरी देनी पड़ रही है, आपका सरप्लस हो रहा है, डेफिसिट हो रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में, बजट में कुछ भी होता है, आपको सैलरी देनी पड़ेगी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को. सो दैट काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर इज अ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. सो यू कैन राइट डाउन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर विच इज द प्लान्ड एंड नॉन प्लान्ड. इसको थोड़ा सा हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. प्लान्ड एक्सपेंडिचर एंड हियर वी टॉक अबाउट नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर. प्लान्ड एक्सपेंडिचर तो वही हो गई, सैलरीज हो गई हमारी, दैट वी हैव टू, हमें खर्चा करना ही पड़ेगा, गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा. एडमिनिस्ट्रेटिव
पता है कि गवर्नमेंट को पार्लियामेंट में इतने रुपए पे खर्चा करना पड़ेगा, या जो एडमिनिस्ट्रेटिव हाई पोस्ट पे लोग जो हैं उनको जो पेमेंट देनी पड़ेगी, जो हमने ऑलरेडी अपने जो एम्बेसीज में लोग बिठा रखे हैं उनको जो सैलरी देनी पड़ेगी वो फिक्स्ड है, वो हमें देनी ही पड़ेगी, वो प्लान होती है हमारी एक्सपेंडिचर। एंड सम काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर्स आर विच आर प्लान। सबसे इंपॉर्टेंट 5 ईयर प्लान के ऊपर जो एक्सपेंडिचर होता है, पहले से प्लान कर लेते हैं ना 5 साल तक ये खर्चा करेंगे। 5 ईयर प्लानिंग के अंदर जो हमारा एक्सपेंडिचर होता है, ये वाला एक्सपेंडिचर भी हमारा प्लान एक्सपेंडिचर होता है, जो हमने इनिशियली डिसाइड कर लिया होता है। हेल्थ के ऊपर इतना खर्चा करेंगे, इस मनरेगा पॉलिसी पे इतना करेंगे, कौशल विकास पे इतना खर्चा करेंगे। सो दैट इज ऑलरेडी प्लान बिफोर हैंड्स, तो दैट इज कॉल्ड अ प्लान एक्सपेंडिचर फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। एंड द रेस्ट ऑफ बड़े सारे जितने मर्जी ऐड करते रहो उसमें, तो गवर्नमेंट ने पहले डिसाइड कर लिया कि टोटल पेंशन जो है ये देनी है, स्कॉलरशिप्स हैं इतने देने हैं, दैट कैन बी द पार्ट ऑफ दिस। यू कैन राइट इट मच मोर इफ यू वांट, बट हम 5-7 तो जो है याद रख के हमें करने वाले हैं कि कौन से खर्चे हैं जो गवर्नमेंट के, जो पहले से प्लान होते हैं, जिनको एक्सीजेंसेस के बेसिस पे चेंज नहीं किया जा सकता, विच इज ऑलरेडी बीइंग डिटरमाइंड बिफोर हैंड्स प्रिपेयरिंग द बजट। डन। अभी हम बात करते हैं नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है तो गवर्नमेंट के खर्चे। अभी खर्चे मीन्स खर्चे, नॉट एसेट्स। प्लीज कीप इन योर माइंड, डोंट टॉक अबाउट द एसेट्स, डोंट टॉक अबाउट द लायबिलिटीज। हम सिर्फ और सिर्फ खर्चे की बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट के वो खर्चे जो एकदम से आ गई, कुछ नेशनल क्लैमिटीज आ गई, कोई वॉर पे आ गया खर्चा, ठीक है, नॉन प्लान है वो। अगर हम थोड़ा सा डिपेंड करें कौन सा खर्चा है, कैसे खर्च रहे हो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू बाइंग सम Rafale, then it is an asset. If you are buying some एनक्लरीज दैट इज being spended out and खत्म हो जाएगा। आप सिर्फ लोगों को कुछ महीने के लिए जो लोग उस पे हैं बॉर्डर पे हैं उनको 2-2 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा सैलरी दे देते हो, तो वो तो फिर आपका शॉर्ट टाइम है ना, वो लॉन्ग टाइम नहीं रहने वाला। तो किस तरह का एक्सपेंडिचर है? और कुछ गर्ल्स वो टॉकिंग अबाउट समथिंग, कुछ ऐसा खर्चा जो आपको पता लगे कि नॉन प्लान है। वैसे डिफेंस एक्सपेंडिचर आ सकता है, हम मना नहीं कर रहे हैं, दैट इज ओके, दैट्स अ गुड आंसर, दैट समटाइम्स इफ वी हैव वॉर वी हैव टू स्पेंड सम मनी, हमें कुछ ना कुछ तो खर्चा करना पड़ेगा ना डिफेंस के ऊपर। तो डिफेंस और डिफेंस एक्सपेंडिचर, वॉर एक्सपेंडिचर, दैट इज कॉल्ड एज एन नॉन प्लान, अचानक से आ सकती है। अभी जो क्लेमिटीज आई हैं, पेंडेमिक आया है, बट वो जो डिफेंस पे खर्चा है वो तो बाकी जहाँ पे करना है तो उसको शिफ्ट करके डिफेंस पे कर सकते हैं। नहीं कर तो सकते हैं, हम तो बात कर रहे हैं कि कौन सा एक्सपेंडिचर हो सकता है। हम अभी यहाँ ये डिस्कस नहीं कर रहे कि कहाँ से आया होगा। सॉरी, डिजीजेस के ऊपर, डिजीजेस पे हाँ कोई क्लैमिटी आ जाए, या अगर जैसे पैंडेमिक है, द गवर्नमेंट हैज़ टू प्रोवाइड सम सब्सिडीज टू द पीपल। 2-2 हज़ार रुपया जो घर लौट रहा है उसको मिल रहा है ना, वर्कर्स को मिल रहा है। सो दीज आर द पैंडेमिक्स, आर द क्लैमिटीज, आर इंटरेस्ट रेट पेमेंट। समटाइम्स कोई कंट्री हमसे कह सकती है नहीं आज के आज हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करो, हमारा लोन आज के आज रिटर्न करो, क्योंकि उनको अपनी कम कंट्री में जरूरत हो सकती है मनी की। तो समटाइम्स वी आर नॉट प्लान टू स्पेंड मनी, बट विच इज कमिंग अप टू द एक्सीजेंसीज, हमारे पास आ जाती है तो हमें प्लान करना पड़ता है। जैसे अभी हम ये कहें कि अगर गवर्नमेंट ने यूक्रेन वॉर हो गया तो हमें इमीडिएट पर्पस पे अपने कंट्री के लोगों को वहाँ से छुड़वा के लाना पड़ा, तो वट एवर द एक्सपेंडिचर ऑन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पीपल एंड उनको 5 days 6 days, अगर कोविड था तो 12 days 15 days उनको जो क्वारंटीन रखने का खर्चा था गवर्नमेंट का, वो गवर्नमेंट का खर्चा था, वो एक्सीजेंसी थी, वो पता नहीं था कि प्लान होने वाला है, बट गवर्नमेंट डिड इट। सो दीज काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर, सोशल सर्विसेज गवर्नमेंट ने, कोई गवर्नमेंट को पता लग गया कि कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम इकोनॉमी में आ गई है, तो उससे रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने इंजेक्शंस प्रोवाइड किए आप लोगों को, वो गवर्नमेंट प्लान नहीं थी, गवर्नमेंट ने अपना खर्चा आया कहाँ से, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। Here we are talking about which kind of expenditure is there. हम सिर्फ टाइप की बात करें, वो ऊपर जाके दोबारा पे बात करेंगे कि वो पैसा आता कहाँ से है ना, वो टोटल 100 रुपीज़ को कैसे बांटना है वो बाद में बात करेंगे। सो नॉन प्लान्ड आर ऑन डिफेंस एक्सपेंडिचर एंड सम पेंडेमिक्स, some exigencies, emergencies, और क्या हो सकता है? जैसे हम ये पैंडेमिक का ही पार्ट हो गया। वैसे तो ये खर्चा था कि पैंडेमिक आप इंटरनल कर रहे हो कि एक्सटर्नल कर रहे हो, है ना। अगर इंटरनल है तो वो आपका कंट्री के अंदर
जाएगा। अगर एक्सटर्नल उस टाइम पीरियड में हमने बहुत सारी कंट्रीज को एक्सपेंडिचर करके दिया, उनको सब्सिडीज प्रोवाइड की, तो दिस पेंडेमिक एक्सपेंडिचर, जिसको हम लोग एक्सपेंडिचर भी दो तरह बोल सकते हैं, इंटरनल या फिर एक्सटर्नल, सो दीज ग्रांट्स कैन बी देयर, ठीक है जी। ग्रांट्स के साथ साथ सब्सिडीज भी आ सकती हैं। कुछ सब्सिडीज हमने दे दी, दूसरी कंट्री को सस्ते में क्लोरोफ्लोमिन देनी शुरू कर दी, HQS देना शुरू कर दिया, तो वो हमारा एक्सपेंडिचर हो जाएगा। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ ओनली एंड ओनली द रेवेन्यू एंड रेवेन्यू। कमोडिटीज का इमरजेंसी इंपोर्ट्स वेरिएंट्स दैट कैन बी कवर, इमरजेंसी लिखते हैं ना जब वर्ड, तो इसमें सारी चीजें आ गई इमरजेंसी के रिगार्डिंग, ठीक है। तो आप इसके अंदर इसको डिवाइड कर सकते हैं, आप अपनी इच्छा के लिए याद करने के लिए लिख सकते हैं कि क्या क्या आप इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। सब सोशल सर्विसेज, अगर आपको, जैसे हमने कहा कि पेंडेमिक के थ्रू लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट से बचाने की वजह से गवर्नमेंट को कुछ पैसा खर्च करना पड़ा, तो वो है तो सोशल सर्विस ही, पैसा वापस तो नहीं आना, तो वो सोशल सर्विस के ऊपर एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने किया कि हर किसान को या जो वो हैं जो वापस घूम जा रहे हैं, वर्कर्स जा रहे हैं, उनको 2,000 रुपीज़ दे दिए जाएं। दैट इज सपोज नॉट प्लान, दैट इज जस्ट हैपन बिकॉज ऑफ सम अनदर इमरजेंसी। तो ये सोशल सर्विसेज स्कीम्स के अंदर भी कुछ प्लान इसके अंदर आ चुका है। मनरेगा इसमें आ गई, कौशल विकास आ गई, इसमें सारी पॉलिसीज पहले से आ गई हैं, लेकिन कुछ ऐसी पॉलिसीज, ऐसे कुछ सोशल प्रोग्राम्स ऑन अ टाइम स्टार्ट हो जाए, तो सोशल सर्विसेज भी इसके अंदर आ सकती है ना। सो दीज आर कमिंग अंडर द revenue expenditures and revenue receipts. Hope it's okay. Shall we move further? Now we are talking about obviously these revenue expenditures are also not creating some assets and liabilities. ये भी ध्यान रखिएगा ना। तो रिसिप्ट्स वैसे जो मेन मुद्दा होता है ना, दैट इज अबाउट एक्सपेंडिचर, क्योंकि गवर्नमेंट जब भी पैसा खर्च करती है तो उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि कुछ बने। आर यू गेटिंग अ पॉइंट? पैसे आने से तो कुछ नहीं बनने वाला, वैसे भी नहीं बनने वाला, ना वहां से बनने वाला है। अल्टीमेटली तो पैसा खर्च करके कुछ बनना चाहिए ना। एसेट तो पैसा खर्च करके बननी चाहिए, एसेट लायबिलिटी तो पैसा खर्च करके होनी चाहिए कम, लेकिन यहाँ खर्चे में से कोई लायबिलिटी भी नहीं खत्म हो रही और कोई एसेट भी नहीं क्रिएट हो रहा, ये सारा पैसा बेकार जा रहा है, isn't it? ये पैसा फिक्स्ड है कि जाना ही जाना है, इससे कोई एसेट नहीं क्रिएट हो, आपको सैलरी देके कोई एसेट प्लानिंग से तो इंफ्रास्ट्रक्चर वो वेलफेयर स्कीम्स के अंदर आ जाता है ना। प्लान वो इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनेगा, हाँ वो एसेट कह सकते हैं क्रिएट होती है, लेकिन हम उसमें 5 ईयर प्लान एक्सपेंडिचर अगर हमने इसमें सोशल वेलफेयर स्कीम चला दी, मनरेगा जैसी चला दी, या कोई ऐसी स्कीम चला दी जिससे कौशल विकास योजना लोग लोन ले रहे हैं और जाई जा रहे हैं, तो दैट इज नॉट क्रिएटिंग समथिंग फॉर मी। इट मे क्रिएट अ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, बट इट मे, मतलब इसमें भी हम वो वाला ही खर्चा लेंगे जिसमें एसेट क्रिएट नहीं होनी चाहिए। यही चीज़ हम वहाँ भी ले सकते हैं, ये जरूरी नहीं है जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ ले ली वो वहाँ नहीं लूँगी मैं, वो वहाँ लेंगे हम तो वो उस सेंस से लेंगे कि हम उससे एसेट क्रिएट कर रहे हैं। आर यू गेटिंग अ पॉइंट? हमने यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर नहीं लिखा, लेकिन वहाँ पर हम इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर लिखेंगे क्योंकि उससे हमारी एसेट क्रिएट होगी। गेटिंग अ पॉइंट? लेट्स मूव टू द कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल बजट। कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर दे डू create assets and they decrease to decrease the liabilities. It does. ये आपकी लायबिलिटीज को भी कम कर देता है और आपकी इनकम को भी जनरेट करता है। एंड दीज आर द रेगुलर, चलो मैं बाद में डिफरेंसेस आपको बाद में बताती हूँ। ये एक तो लॉन्ग टर्म होते हैं बिकॉज इट इज़ क्रिएटिंग अ प्रॉपर्टीज, एसेट्स, इन्वेस्टमेंट समवेयर समहाउ। आपकी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो सकती है, आपकी FIIs हो सकती हैं, आपकी FDIs हो सकती हैं, ऐसी सब जगह पर किया गया खर्चा जहाँ से आपकी कोई ना कोई खर्चा, ऐसी जगह किया गया एक्सपेंडिचर जहाँ से आपकी कोई एसेट क्रिएट होगी। कहाँ होगी एसेट क्रिएट? अब हम ऐसे एक्सपेंडिचर की बात करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसिप्ट तो, कैपिटल रिसिप्ट तो चलो बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक्सपेंडिचर इज मेन इंपॉर्टेंट थिंग। कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ किया जाए ताकि आपकी एसेट क्रिएट हो जाए? इंफ्रास्ट्रक्चर। फर्दर
वेरी दे नहीं सकते हैं, लोन उतार दो, पुराने लोन उतार दो, तो क्या हो गया, आपकी लायबिलिटी कम हो गई। आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर दिया, वो क्या है, लायबिलिटी कम हुई है, हाँ लायबिलिटी कम हो गई। आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर दिया या आपने पूरा प्रिंसिपल अमाउंट रिटर्न कर दिया, तो वो आपकी लायबिलिटी को कम कर देगा। ठीक है, आपने कोई बिल्डिंग बना ली, आपने पब्लिक सेक्टर यूनिट नया खड़ा कर दिया, आपने रेलवेज में नया इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर दिया, उन सबसे आपकी एसेट भी क्रिएट हो रही है। दो चीज़ें ध्यान में रखनी है, पहले तो एसेट क्रिएट करने वाली चीज़ें ले आओ, जहाँ जहाँ से एसेट क्रिएट हो जाएगी, फिर वो चीज़ें करो जहाँ से आपके पैसे पे लायबिलिटी कम हो रही है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर दो, प्रिंसिपल अमाउंट पे कर दो, दैट इज डिक्रीजिंग द लायबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट कर दो, व्हाट इज डिसइन्वेस्टमेंट? Selling of public sector units into the private hand. The share of public sector units, the government treasury bills are selling up to the government. जो भी हमारी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज हैं वो अगर हम बेच देते हैं तो उससे क्या हो गया, एसेट क्रिएट होगी। It creates asset. It do not decrease assets. एसेट बनाता है, एसेट कम नहीं करता है। It does create assets and it does decrease the liabilities of the government. So we need to talk about those examples which is decreasing the liability of the government. बताइए, क्या हम जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं उनको बेच दें तो वो हमारी लायबिलिटी कम हो रही है कि नहीं हो रही? जो सिक यूनिट्स हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, वो सिक यूनिट्स हैं, अगर उनको हम सेल आउट कर देते हैं तो क्या वो हमारी लायबिलिटी को कम करते हैं? हाँ, लायबिलिटी को कम करते हैं। नहीं तो आपको हर साल इतने लोग जितने वहाँ सैलरी ले रहे हैं उनको देने पड़ेंगे। सो समहाउ यू आर डिक्रीजिंग योर लायबिलिटीज। गवर्नमेंट जब अपनी सिक्योरिटीज को, अपने एसेट्स को बेच देती है तो समहाउ एसेट तो कम हो गया, एसेट तो कम हो गया ना, लेकिन लायबिलिटी कम हो गई, क्योंकि आपकी अब लायबिलिटी खत्म हो गई। अब आप उसको बाउंड नहीं हो हर साल 50,000 करोड़ रुपया देकर उसको जिंदा रखने के लिए, उसको आपको हर साल सैलरीज नहीं देनी पड़ेगी। यू कैन वन गो में आप उसकी मनी को रिटर्न बैक कर सकते हो। डन। और कुछ हो सकती है, मनी इन अर्नड बाय सेलिंग ऑफ एसेट्स विच इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। पैसा तो आया ना, एसेट चली गई लेकिन लायबिलिटी कम हो गई। सेलिंग ऑफ शेयर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस एंड सेल ऑफ ट्रेजरी बिल्स, जैसे मैंने आपको शेयर की बात की, शेयर गवर्नमेंट मार्केट में बेचती है तो वो लोगों के पास तो आई गई ना, हिस्सा तो क्रिएट हो गया, क्रिएट हो गया, आपकी लायबिलिटी कम हो जाएगी। फर्दर दे कैन सेड दैट रिसीव मनी फ्रॉम द बोरिंग्स, आपने लोन ले लिया, पैसा आ गया, लेकिन वो फ्यूचर के लिए लायबिलिटी बन गई है ना। सो otherwise it is a income which is coming into your money, it is coming into your pocket, but somewhere somehow that will create a liability for the future. So it does create liability, आपके लिए liability create कर देता है और आपके लिए assets create नहीं करता। उल्टा लिख दिया, हाँ ये नहीं करता ना, ये करता है, ये आपकी liability create कर रहा है। तो आप फ्यूचर में आपके ऊपर liability बन जाएगी अगर आपने किससे लोन लिया, ठीक है। तो अगर मुझे लगता है इस वर्ड से कंफ्यूज हो रहे हैं, it does create liability, does decrease the, अब डिक्रीज का मतलब यू मस्ट बी गोइंग ऑन, इस चीज से आप परेशान हो रहे हैं मुझे लग रहा है। अब उन दोनों तीनों वर्ड्स का मीनिंग समझ में आ रहा है। हमने अपने एसेट्स बेच दिए, ठीक है, क्या हुआ, लायबिलिटी कम हो गई। आपने लोगों से दूसरी कंट्री से लोन ले लिया, अभी तो एसेट क्रिएट हो जाएगी, 2 साल के बाद वो लायबिलिटी बन जाएगी, है ना। आपने ट्रेजरी बिल्स, शेयर्स मार्केट में सेल आउट किए, आपकी एक बार लायबिलिटी खत्म हो गई, बट इट क्रिएट्स अ एसेट फॉर समवन एंड इट मे जनरेट अ लायबिलिटी फॉर फ्यूचर एसेट। आपके लिए पर 10 साल के बाद आपके ऊपर लायबिलिटी बन गई कि आपने सारा पैसा इनको डबल रिटर्न में वापस करना है। एक बार तो आपके पैसा आ गया लेकिन वो आपके ऊपर लायबिलिटी बन गई। फर्दर वी कैन से रिसीविंग मनी फ्रॉम बोरिंग, रिकवरी ऑफ लोन्स, आपको लोन वापस मिल गए, जो आपने लोन दे रखे थे लोगों को वो लोन वापस आ गए। फॉरेन कंट्री को लोन दे रखा था 1 करोड़ को, वो वापस आ गया आपके पास। क्या हुआ, पैसा भी आ गया, एसेट खत्म हो गई। आपने किसी से पैसा लेना था ना, वो आपकी एसेट थी, वो खत्म हो गई। सो इट डज डिक्रीज द एसेट्स, इट्स मे क्रिएट अ लायबिलिटी, लायबिलिटी भी क्रिएट कर देता है और एसेट्स भी कम कर देता है। सो दैट इज द रीजन। आप इन्हीं साइंस को लेकर अगर चलते हैं, क्रिएट एंड डिक्रीज नहीं लिखते हैं वो, देन कुड बी इजीली टू अंडरस्टैंड फॉर यू। इट मे क्रिएट एन एसेट फॉर यू, इट मे डिक्रीज द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट।
You can take these two words rather than taking a creating and decreasing. It does not, it does. तो आपको समझ में आ जाएगा. इसमें जो वो भी दे सकते हैं, जब हमें किसी कंट्री का रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना है, हम उसके लिए अलग से लोन लेते हैं, वो भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं. वो तो लायबिलिटी बन गई ना, हाँ ले सकते हैं, लेकिन उस एसेट तो नहीं खत्म हुई बट लायबिलिटी क्रिएट हो गई. लायबिलिटी तो बन गई ना, आपने अभी जितना प्रिंसिपल अमाउंट देना था अब आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर भी लोन देना है. पैसे वही देखो, मैंने बोरिंग भी तो ये बोला ना कि आपने किसी से लोन ले लिया तो वो भी लायबिलिटी क्रिएट हो गई. आपने किसी से रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करने के लिए फिर से लोन लिया, वो भी लायबिलिटी क्रिएट हो गई. जो आपकी लायबिलिटीज को क्रिएट करता है और आपकी एसेट्स को डिक्रीज करता है. लोन वापस आ जाए वो भी एसेट खत्म हो गई. पहले आपसे लेनदारी थी हमारी और वो लेनदारी खत्म हो गई. तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट इन विच यू आर डिक्रीजिंग द एसेट्स एंड इंक्रीजिंग द लायबिलिटी. लायबिलिटीज इंक्रीज होनी चाहिए और क्रिएशन जो है एसेट का वो कम होना चाहिए. आपकी एसेट थी वो एसेट नहीं रही. So loan taken from RBI, loan taken from foreign banks, borrowing coming out of from foreign banks, वो सारी चीज़ें. So I'm just writing, you can answer what they are. Borrowing from either RBI or foreign countries या foreign institutions, कहीं से जो भी आप लोन लेके आपने. और क्या किया था इसमें? सेलिंग डिसइन्वेस्टमेंट बेसिकली. आपने अपने शेयर्स, डिबेंचर्स, ट्रेजरी बिल्स इनका सेल कर दिया, शेयर का सेल कर दिया. And the rate of interest payment as well, that can be an example of this thing. And further one thing is taken as selling of treasury, recovery of loans. Yeah. लोन दिए हुए थे वापस आ गए, एसेट खत्म हो गया. मनी अर्न बाय सेलिंग ऑफ एसेट्स, डिसइन्वेस्टमेंट हो गया. सेलिंग ऑफ शेयर हो गया. Received money from borrowings, received money from other countries, states, as well as the recovery of loan. These are the 5-6 examples that create your liabilities and decrease the assets. फिर से लिख रही हूँ, it decreases the assets and it creates your liability. Liability खड़ी हो जाती है और assets जो है वो खत्म हो जाती है. ये दोनों का डिफरेंस अगर समझ में आ जाएगा, then you can able to understand this. Now one we have left in between is capital budget के अंदर capital receipts. पैसा कहाँ से रहा और जो हमारी assets create करेगा, कौन सा पैसा जो हम उसमें asset investment, अभी हमने बात की ना, इसमें जो नहीं आएगा वो वहाँ पे आ जाएगा. कौन सी हो गई? एक तो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे जो पैसा खर्च कर रही है. All the expenditure done by the government on the infrastructure expenditure. रोड्स, ट्रांसपोर्ट, डैम, ब्रिज, हाईवेज एंड सो ऑन. सारा गवर्नमेंट का खर्चा हो सकता है. दैट कैन बी क्रिएट अ फ्यूचर. अभी देखो अभी मैं पहले इसके पॉइंट्स लिखती हूँ, फिर आपको रीजन लेते हैं. मशीनरी परचेज, कॉन्ट्रीब्यूशन इन purchase of machinery, एक और हम ले सकते हैं ये जो इसमें ये था 5 ईयर प्लान में वो वाली चीज़ें जो ये वाली होगी. वैसे तो जो 5 ईयर प्लान के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट वगैरह कर रही थी वो बड़ी सारी चीज़ें. तो दीज आर द रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट दैट गवर्नमेंट इज गेटिंग आउट ऑफ इट. वो हमारे एक्सपेंडिचर थे, हमारे रिसिप्ट्स हैं. गवर्नमेंट को इन ये सारी भी चीज़ें देखो हमारी एसेट्स क्रिएट कर रहे हैं. रोड, ट्रांसपोर्टेशन, ब्रिज, डैम, है ना, ये क्या हमारी कहीं ना कहीं एसेट्स क्रिएट कर रहे हैं. और लायबिलिटीज को, लायबिलिटी तो हो ही गई ना, गवर्नमेंट को पैसा तो खर्चा तो करना ही पड़ेगा ना. लायबिलिटी तो क्रिएट हो ही रही है, बट इन फ्यूचर लायबिलिटी खत्म हो सकती है कि कल आज से 20 साल के बाद नहीं बनाना पड़ेगा, आज आपने खर्चा अपना कर दिया. तो सेम एज कोई मशीनरी बाय कर ली, कोई पब्लिक सेक्टर यूनिट बना लिया,
एसेट क्रिएट हो गई गवर्नमेंट ने, दैट कैन बी क्रिएटिंग योर एसेट्स एंड दैट इज डिक्रीजिंग द लायबिलिटी। वहाँ पे वो चीज़ें बेच रहे हो, यहाँ पे वो क्रिएट कर रहे हो। सो एक्सपेंडिचर जो होगा वो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये वाली चीज़ ज़्यादा है। ये रिवेन्यू रिसिप्ट्स तो देखो कहीं ना कहीं से गवर्नमेंट के पास आनी ही आनी है, लोन वापस आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट वापस आ गई, ये वही सारे पैसे खर्चे। सो दिस इज ऑल अबाउट द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट इनकम। अभी देखो अगर आपको टोटल इनकम की बात करनी है, टोटल रिसिप्ट्स की बात करनी है, these can be the receipts of the economy and if you talk about the expenditures, these can be the expenditures of the economy. टोटल एक्सपेंडिचर अगर बनाना है तो कहाँ से आएगा, दोनों तरह के एक्सपेंडिचर मिला दो तो गवर्नमेंट के सारे खर्चे आ जाएंगे, ये दोनों चीजें मिला दो तो गवर्नमेंट की सारी इनकम सोर्सेज आ जाएंगी। सो वन वी आर अब नाउ अपर दिस पॉइंट, अब इस पॉइंट पे आइए। इन सारी की सारी रिसिप्ट्स कहाँ से आई है, ये वाली और ये वाली, ये सारी रिसिप्ट्स, ये सारे एक्सपेंडिचर, इन दोनों के बीच का खर्चा हमारा बजट है। टोटल इकोनॉमी को कहाँ से पैसा आ रहा है, चाहे वो रिवेन्यू वाला हो चाहे वो कैपिटल वाला हो, गवर्नमेंट का पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, चाहे वो रिवेन्यू वाला हो चाहे कैपिटल वाला हो, टोटल इनकम में से टोटल रेवेन्यू जो माइनस कर देंगे तो वो हमारा बजट बन जाएगा कि अब पैसे बचे हैं या नहीं बचे हैं, फायदा हुआ है, सरप्लस हुआ है या डेफिसिट हुआ है या दोनों बैलेंस्ड है। डन। मतलब अभी के लिए तो कोई ऐसे क्रिएट नहीं, जो पहले वाली कैपिटल वो रिसिप्ट है, अभी वो रिवेन्यू में है। पहले जो पैसा खर्च किया, क्योंकि देखो ना जो टोल बनाया गया, वो टोल प्लाजा किसी भी यहाँ पर बनाया गया कि पहले आपने टेंडर गवर्नमेंट ने किसी को दिया, गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया ना, पहले तो गवर्नमेंट पैसा खर्च चुकी है, अब गवर्नमेंट वो किस्तों में पैसा वापस ले लिया आपसे। इट्स नॉट लाइक यू हैव डन इट एज एन एक्सपेंडिचर। कौन सा एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, आपने किसी टेंडर को कहा कि आप ये सड़कें बनाए, 2 करोड़ का टेंडर है, आप ले लीजिए और सड़क बना दीजिए, आपने 2 करोड़ का सड़क बना के यू लेफ्ट इट, नाउ दैट इज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर, बट यू आर गेटिंग रिवेन्यू ऑन द कंटिन्यूएशन बेसिस, दैट इज योर। अभी कोई वो रिवेन्यू, सॉरी वो आपकी कोई लायबिलिटी नहीं बना रहा, तो अभी रिवेन्यू रिसिप्ट हो रहे हैं, किया आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर। So further we have after completing this capital receipt capital we have, as I told you, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपके surpluses, आपके बैलेंस्ड और आपके अनबैलेंस्ड को क्रिएट करेगा। So we can say the balanced budget, surplus budget and deficit budget. We can get it if your total receipts or expenditure, the explicit expenditure is equal to anticipated receipts. जितना आपने प्लान आउट किया था इनकम होना चाहिए, उतना ही आपका एक्सपेंडिचर हो जाए तो दोनों बराबर हो जाएंगे, तो रियल बैलेंस। नो इनकम इज मोर, नो एक्सपेंडिचर इज मोर, सो इट इज टू बी अ 1 fiscal year। मेंशन जरूर कीजिएगा, दिस इज फॉर द 1 fiscal year। इफ योर टोटल एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू एंटिसिपेटेड रेवेन्यू रिसिप्ट, दैट इज कॉल्ड अ बैलेंस बजट। बट अगर आपके एक्सपेंडिचर जो हैं, लीजिए एंटिसिपेटेड भी लिख सकते हैं आप इसकी जगह। And if it's your expenditures are less than your revenue receipts, only receipts करो। And if your receipts are less than your expenditure, this is called your for 1 financial year, that is called your returns and losses। डन, ये बेसिक्स है, तीनों का रिजल्ट है। अभी और बहुत सारा तरह के हमारे डेफिसिट्स होते हैं,
Okay, let's talk about that. Other kind of deficits. Other kind of deficits. These are basic deficits, we can say. The first kind of deficit is your revenue deficit. Revenue deficit. रिवेन्यू की बात कर रहे हैं तो दैट इज द ओनली रिवेन्यू पार्ट, है ना। तो आपका जो रिवेन्यू रिसिप्ट्स और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, सिर्फ उसका डिफरेंस, रेडी। सो फॉर्मूला वुड बी द रिवेन्यू रिसिप्ट्स माइनस रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, दोनों रिवेन्यू के बीच का डिफरेंस। कहते हैं अगर ये हमारा रिवेन्यू रिसिप्ट और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जो अगर ये दोनों नेगेटिव में आए तो डेफिसिट है ऑब्वियसली ना। अगर रिसिप्ट ज़्यादा है, अगर मैं आपको एग्जांपल लूँ, ये 8 रुपीज़ है, वो 3 रुपीज़ है, तो क्या होगा? पॉजिटिव हो गया, तो डेफिसिट थोड़ी हुआ। तो आपका क्या ज़्यादा होना चाहिए? एक्सपेंडिचर ज़्यादा होना चाहिए। ये दोनों का रेजिडुअल जो है वो नेगेटिव में आना चाहिए। आर गेटिंग माय पॉइंट? अगर इन दोनों का आंसर माइनस, ये 5 रुपीज़ है, ये 3 रुपीज़ है, तो आंसर क्या आ गया? 2 रुपीज़। रिसिप्ट इज ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर, सो इट इज नॉट अ डेफिसिट। दोस दे सेड दैट इट शुड बी 5 एंड इट शुड बी 8। आंसर शुड बी माइनस में। अगर ये नेगेटिव में आ रहा है तो आपका रिवेन्यू डेफिसिट में होगा, अदरवाइज इट कुड बी इनटू द surplus. If you can switch off the fan, please. If it's from there. Thank you. So further they said that it is write down the 2-3 points basically what I am to extend over there. Revenue deficit include includes only such transactions that affects the current income and expenditure of the government. Current income and expenditure of the government. This is already committed expenditure. This is already committed expenditure which cannot be reduced. कौन सा एक्सपेंडिचर था इसके अंदर? सैलरीज वाला था, एडमिनिस्ट्रेटिव्स वाला था, तो ये तो पहले से ही प्लान है ना। इस एक्सपेंडिचर को तो हम कम कर नहीं सकते। टैक्स की इनकम तो जो आनी है वही आनी है, वो कहीं से वापस आ नहीं सकती। तो ये वाला एक्सपेंडिचर तो जो है वो रहने ही वाला है। इसको हम पहले से प्लान, मतलब 5 ईयर प्लान पहले से प्लान था, उसको हम कम नहीं कर सकते। कोई वेयर एंड टीयर तो हुआ नहीं कि आपने विद एकोमोडेटिंग इफेक्ट आपने किसी देश में इन्वेस्टमेंट कर लिया, कहीं से बोरो कर लिया, वो तो किया नहीं, कैपिटल तो कर नहीं रहे क्रिएट। ये तो रियल वाली पिक्चर थी। तो दैट्स व्हाई इट कैन नॉट बी चेंज, इट कैन नॉट बी एक्सटेंड और डिक्रीज बिकॉज इट इज ऑलरेडी बी कमिटेड। सो दीज काइंड ऑफ, इसके एग्जाम्पल में लिख लो सैलरीज, ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर है ना, एडमिन के ऊपर होने वाला खर्चा पहले से प्लान होता है। तो इसका डेफिसिट होना कई बार ज़्यादा चांसेस रहते हैं, डेफिसिट आते ही आते हैं, क्योंकि खर्चे तो प्लान होते ही होते हैं और इनकम इज कमिंग ऑफ वेरी मच लेस। कहाँ से इनकम आ रही है? सिर्फ टैक्स और नॉन टैक्स से इनकम आ रही है, तो इसके डेफिसिट आने के चांसेस हमारे पास ज़्यादा रहते हैं। ये रख सकते हैं। या वन मोर थिंग इज, this is the quantitative
फॉर्म, न्यूमेरिक नंबर में आएगा ना, दिस इज द क्वांटिटेटिव फॉर्म that how much gross deficit in currency term, or percentage of GDP for particular year, or percentage of GDP for a particular year. सो वी डिस्कस्ड अबाउट द रेवेन्यू डेफिसिट्स. अब वो देखो उसके बारे में बता रहे हैं कि रेवेन्यू डेफिसिट 3-4 पॉइंट्स कीप इन योर माइंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट रेवेन्यू डेफिसिट. पहली बात, इट इज अबाउट द टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट एंड टोटल एक्सपेंडिचर एंड इट शुड बी कमिंग टू द नेगेटिव ओनली. इफ इट इज अ सरप्लस देन वो पॉजिटिव आएगा. अगर वो नेगेटिव में आ रहा है इसका मतलब डेफिसिट है. और क्योंकि ये रेवेन्यू की बात कर रहा है, टोटल इनकम आपके हाथ में जो आ रही है तो एक क्वांटिटेटिव टर्म होती है. ये इकोनॉमी की टोटल जीडीपी का कितना हिस्सा लॉसेस में गया वो बताता है. ठीक है. फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि ये पहले से प्लान एक्सपेंडिचर होता है जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते. तो एक्सपेंडिचर तो होगा ही होगा. ये कोई वेलफेयर वाला एक्सपेंडिचर नहीं है या अकोमोडेटिंग एक्सपेंडिचर नहीं है जिसको कम करके आप अपने डेफिसिट को हटा सकते हो. तो ये जो है वो फ्री रियल पिक्चर होती है. जैसे मैंने आपको जब वो बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला बताया, जो करंट अकाउंट था वो क्या था, रियल पिक्चर थी. किसी को जबरदस्ती आप एक्सपोर्ट नहीं करा सकते, आप जानबूझकर इंपोर्ट नहीं कर सकते. तो वो तो करना ही करना था ना. तो ये वाला भी एक्सपेंडिचर है जो करना ही करना है. तो इसको हम चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर सकते. ये डेफिसिट आना इकोनॉमी की रियल पिक्चर को रिप्रेजेंट करता है. द सेकंड काइंड ऑफ डेफिसिट्स आर इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट. Effective revenue deficit. Revenue deficit, that is revenue deficit minus grants given to state for capital assets. For capital assets. ओके. अभी रेवेन्यू डेफिसिट तो वही वाली बात है. इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट की बात की है कि जो आपका एक्चुअल में घाटा आ गया उसमें से वो वाला पैसा माइनस कर दीजिए जो आपने ग्रांट किया है स्टेट को अपनी कैपिटल एसेट्स को जनरेट करने के लिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं फ्यूचर में आपकी इनकम जनरेट करेगा. आर यू गेटिंग इट? कैपिटल एसेट्स के ऊपर किया गया खर्चा, वो ग्रांट्स जो आपने स्टेट, ये क्या है, ये एक्सपेंडिचर है, ये आपका खर्चा है, तभी तो माइनस कर रहे हैं ना कि घाटा, यहाँ तो घाटा आ गया. ये घाटा वो घाटा नहीं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बाद में इनकम जनरेट करेगा. Are you getting my point? So this is a grant given to the states for the capital asset. गवर्नमेंट ने जितना खर्चा किया, खर्चा हमने कहा टोटल इनकम माइनस टोटल खर्चा, जो वो खर्चा था उसमें से कुछ एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने सारे स्टेट्स को 1-1 करोड़ रुपया दे दिया कि आप अपनी कंट्री, अपनी स्टेट में आप रोड बनाओ, आप अपनी स्टेट में कोई पब्लिक सेक्टर यूनिट खोल लो, आप अपनी स्टेट में कोई वेलफेयर प्रोग्राम चला दो, जिससे आज नहीं 2 साल के बाद इनकम जनरेट होनी शुरू हो जाएगी. तो वो आज तो खर्चा है, वही वाली बात जो मैंने इनसे बोली, आज तो वो एक्सपेंडिचर था लेकिन कल को वो इनकम जनरेट करके देगा, तो वो मेरा नुकसान नहीं हुआ. कहीं ऐसा पैसा लगाया हुआ जो आज तो खर्चा हो जाए लेकिन 2 साल के बाद वो इनकम जनरेट करे तो वो हमारा नुकसान नहीं होता. तो वो नुकसान को हम नुकसान, वो खर्चे को हम नुकसान नहीं मान रहे. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दैट एक्सपेंडिचर इज नॉट कंसीडरिंग एज अ डेफिसिट, इसलिए उसको टोटल डेफिसिट में से माइनस कर दिया कि ये मेरा नुकसान नहीं है. इज इट ओके? लेट्स टेक एन एग्जांपल. ये 100 रुपीज क्या है, ये है मेरे
डेफिसिट्स। कौन से? रिवेन्यू डेफिसिट। ये रिवेन्यू डेफिसिट कहां से बने थे? रिवेन्यू रिसिप्ट्स माइनस रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू रिसिप्ट्स का मतलब मैंने 200 रुपए तो मेरे पास आए, टैक्स से नॉन टैक्स से पैसा इकट्ठा हुआ, और जो मैंने खर्चा कर दिया, इस खर्चे में मैंने क्या क्या किया? स्टेट को पैसा दिया, 5 ईयर प्लान में खर्चा किया, सैलरीज के ऊपर खर्चा किया, मैंने स्टेट गवर्नमेंट को पैसा खर्चने के लिए दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो खर्चा किया, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस पे जो खर्चा किया, वो सारे खर्चे मेरे यहाँ पर हैं। इसी में से कुछ, चलो अभी हमने कहा कि हमने 500 रुपीज का खर्चा कर दिया, तो हमारे पास नुकसान कितने का आया? 300 रुपीज का मेरा डेफिसिट आ गया रिवेन्यू के अंदर। मैंने कहा जी हमारा जो रिवेन्यू डेफिसिट है वो 300 रुपीज का है, दैट्स इट। जब हमने उसको कहा कि इफेक्टिवली बताइए कि सच में जो आपका रिवेन्यू डेफिसिट था वो कितना था, तो हमने कहा ये 300 रुपए तो नुकसान है ही है, ये क्या मेरा, ये डेफिसिट तो है ही है, लेकिन इसमें से ना 100 रुपए शायद वापस आ जाएंगे। कहां से आएंगे? जो मैंने यहाँ पर 500 रुपए में से जो 4 स्टेट को 25-25 रुपए दिए हैं ना, वो 25-25 रुपए से ना कोई एसेट क्रिएट होगी और वो बाद में इनकम जनरेट करके देंगे, चाहे टोल प्लाजा ही क्यों ना हो। इन्होंने सारों ने 25-25 रुपए में सड़कें बना ली, इससे उनको टोल की इनकम मिल रही है और हर साल इनकम को जनरेट कर रहे हैं। सो दिस इज नॉट माय डेफिसिट, that has to be deducted from there, then this 200 rupees is called actual deficit. Are you getting it? That's why it is called a effective revenue deficit that is being granted to the states for the capital assets involvement. अगर वो involvement capital asset पे हो जाती है तो वो आज तो खर्चा है लेकिन कल को मेरी इनकम जनरेट करके देगा। So write down the one line. The revenue expenditure of Government of India, revenue expenditure of the Government of India which were done, revenue expenditure of the Government of India which were done in the form of GOCA, कैपिटल है GOC और ब्रैकेट में लिख लीजिए ग्रांट फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट, which is state and UT implementation of the centrally sponsored programs, state and duties implementation of centrally sponsored program, सेंट्रल के जो स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स होंगे, क्योंकि उसी प्रोग्राम के अंदर आपको पैसा मिला ना, तो उस पैसे पे खर्चा करने के लिए जो पैसा है वो खर्चा हम इसमें से निकाल दें, हम उसको ऐड नहीं कर रहे, क्योंकि वो खर्चा जो है आज का तो खर्चा है लेकिन कल को मेरी एसेट क्रिएट करेगा, तो दैट इज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम दैट, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। इज दैट क्लियर? द बोथ ऑफ you should not go back home and go and have a ratta again. Please keep your concepts clear over there only. अगर समझ में नहीं आ रहा आप यहीं पूछ सकते हैं, क्योंकि ये चीज अभी सामने है, एग्जाम्पल सारे सामने हैं, आप लोग सामने हैं, we can have 2-3 examples and we can explain it. Once you will go back home and you will try to find out the things, you will not get the results. आपको समझ नहीं आती रिवेन्यू, आपके लिए सारे वर्ड्स नए हैं, तो आपको रिवेन्यू डेफिसिट क्या है, इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट क्या, आपको कुछ नहीं पता। तो अभी अगर थोड़ी सी बात क्लियर नहीं हुई है तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है जी? सेकेंड वन नहीं क्लियर है, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ। एक और है जिनको भी समझ नहीं आई है, आई वॉन्ट कि आप खुद बोल दें, मैं बार बार आपसे पूछती हूँ। हाँ जी मुझे क्या समझ नहीं आया, प्लीज डू आस्क। ये वाला डन है, गेट आउट। किसी और तरह से समझा सकते हैं इस बात को? चलो इसी तरह से बताइए। नहीं मैम को नहीं बताना है, उनको बताना क्या है इफेक्टिव? ये इफेक्टिव जो रेवेन्यू डेफिशिएंट है, अगर उससे हम जो हमने ग्रांट्स दी हैं स्टेट्स को, अगर वो रिड्यूस कर दे तो वो इफेक्टिव होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल दिया आपने 300 अगर हमारा रेवेन्यू डेफिशिएंट है
और हमने ग्रांट दी है 500 रुपीज़ की ग्रांट दी है किसी स्टेट को, हम वापस ले सकते हैं, तो हमारा इफेक्टिव रेवेन्यू नहीं वापस नहीं लेना उसको वापस नहीं लेना है, मतलब कम कर सकते हैं, नहीं कम भी नहीं करना है, ना वापस लेना है ना कम करना है, तो बाद में जनरेट करके दे देंगे वो। एसेट्स के लिए खर्चा करने को दिया है, ये जो ग्रांट दिया है स्टेट को दिया है, यूटीज को दिया है, अपना कैपिटल एसेट क्रिएट करो, हमारी तरफ से खर्चा हो गया, हमने अपने पैसे खर्च कर दिए, वो पैसे अब आपके पास हैं, हमने आपकी फीस पे पैसे खर्च कर दिए, अब आप उससे एसेट क्रिएट करके दिखाओ, अगर वो एसेट क्रिएट कर दोगे तो वो खर्चा नहीं माना जाएगा, क्योंकि आप इनकम जनरेट कर लोगे उससे दोबारा। Are you getting my point? Are you getting my point? No. Explain it. No, she'll. Come on. कहाँ जहाँ फंसेंगे मैं आपकी हेल्प करूंगी ना. Come on, get up. यहाँ पे ऐसे गोलमोल करके चले जाओगे तो कुछ समझ नहीं आएगा. Okay. Shall I हिंदी? Okay. देखो, ये हमने डेफिसिट क्या होता है, घाटा होता है. घाटा मीन्स टू से जो हमारे पास पैसे बचने चाहिए थे वो नहीं बचे, हमारे पास नुकसान हो गया. सरप्लस का मतलब मुझे फायदा हो गया, यहाँ पर मुझे घाटा हो गया, किसका, पैसे का घाटा हुआ, एसेट का घाटा नहीं हुआ, रेवेन्यू का घाटा हुआ, मनी का घाटा हुआ. मनी का घाटा आता है से जितनी मनी आती है जितनी मनी जाती है. तो आपके घर में 500 रुपए आने थे और 800 रुपए खर्चा हो गया, तो 300 रुपए घाटा है. दैट घाटा इज स्टैंड्स फॉर फिस्कल रेवेन्यू डेफिसिट्स ना. जो ये अब देखो आने कितने थे, ये रिसिप्ट्स हैं, आए पैसे कितने आपके घर में 200 रुपीज और आपने खर्चा कितना कर दिया 500 रुपीज. लेकिन वो जो 500 रुपीज आपके घर में खर्चे गए ना, उसमें से 100 रुपीज जो खर्चे गए वो आपके ऊपर खर्चे गए आपकी फीस देने के लिए. ठीक है, वो खर्चा कर दिया. घर वाले कह रहे हैं 300 रुपए का घाटा हो गया, पैसे तो आए तो 200 रुपए थे और खर्चा हो गया हमारा 500 का, 300 रुपीज हमारे डेफिसिट में चल रहे हैं, हम घाटे में चल रहे हैं. अब उन्होंने कहा कि टोटल बैठ के कैलकुलेट करते हैं खर्चे का एक्चुअली नुकसान कहाँ हुआ है. उन्होंने जब उसको इफेक्टिवली कैलकुलेट करने की कोशिश की, उन्होंने देखा कि जो 100 रुपीज थे ना वो आपको दिए थे आपकी फीस देने के लिए. उनको ये विश्वास है कि जो फीस आपको दी है आप 2 साल के बाद ना वो 200 रुपए कमा के लाओगे, जो 100 रुपए दिए, तो वो खर्चा नहीं है, वो एक तरह से एफडी कर दी है, वो इन्वेस्टमेंट कर दी है कि वो कल को डबल पैसा लेके आएंगी. तो ये क्या है, ये खर्चा नहीं है, ये क्या है, एसेट क्रिएट करने के लिए आपने अपने घर में ही वो जो 100 रुपया खर्चा करा, वो 100 रुपए जो खर्च किया, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो आगे कह लो आपने एक सिलाई मशीन लेके रख दी 100 रुपए की, है तो खर्चा 500 रुपए में आया. लेकिन जो 100 रुपीज से क्या खरीदा आपने, सिलाई मशीन खरीदी, और आपने वो सिलाई मशीन आपको चलानी आती है, आपने उससे स्टिचिंग करके आपने इनकम जनरेट कर दी, तो वो खर्चा तो नहीं था ना, वो क्या थी, इन्वेस्टमेंट थी. इसी इन्वेस्टमेंट को हम कैपिटल एसेट इन्वेस्टमेंट बोल रहे हैं. हम आपको एक स्टेट बना रहे हैं और जो आपका घर है उसको इंडिया बना रहे हैं. नाउ यू आर गेटिंग इट? ओके. नाउ वी आर मूविंग टू द थर्ड काइंड ऑफ डेफिसिट्स, दैट इज कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट्स. देखो एक रेवेन्यू हो गया, दूसरा कौन सा आएगा, फिस्कल डेफिसिट्स आएगा. अगर रिटर्न्स वापस ना आए तो गवर्नमेंट कह ही रही है कि आपने कैपिटल में लगाना है ना, अगर नहीं आए तो कोई बात नहीं, लोग घाटा फिर बढ़ जाएगा. Third one is our fiscal deficits. Fiscal deficits are total receipts minus total expenditure. This total means ठीक है जी, all type of receipts either from revenue or from capital. That's revenue and capital. Receipts तो लिखा ही हुआ है, revenue plus capital. Expenditure मैंने दोबारा लिख दिया. All kind of revenues coming from where, all kind of expenditure going from there. दोनों के बीच का डिफरेंस हमारा टोटल एक्चुअल बजट का घाटा है. वो सिर्फ रेवेन्यू का घाटा, कैश वाला, कैपिटल नहीं, एसेट नहीं थी उसके अंदर. इसमें एसेट का भी खर्चा आ गया और हमारी रेवेन्यू का भी खर्चा आ गया. सो दिस इज कंपैरेटिवली अ मोर रियल पिक्चर ऑफ द बजट.
एंड इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या बता रहा है? If somebody will come with the answer now, I'll just clap for that. Budget. Boring. Very nice, thank you. We'll get it to know about what is the borings. Are you getting my point? अगर आपके फिर से रिसिप्ट क्या है? जो पैसे आए हैं. एक्सपेंडिचर क्या है? जो पैसे जाएंगे. कितने का घाटा हुआ? 100 रुपीज का. तो ये घाटा पूरा कैसे होगा? You will borrow that money from anyhow, either from RBI, either from International Monetary Fund or from World Bank or other countries. कहीं से भी लेके आओ. ये दोनों के बीच का अंतर हमें ये बताता है कि उधार कितना लेना है. नेट बोरिंग्स क्या होंगी हमारी. अगर पॉजिटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू कैन कीप मनी विद योरसेल्फ. अगर ये रिसिप्ट ज्यादा हो जाती है, ये उल्टा होता है, 200 रुपए आते हैं और 100 रुपए जाते हैं, तो 100 बच जाते हैं, ठीक है, सरप्लस हो गया, दैट्स इट. पर हम यहाँ बात ही डेफिसिट की कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम पहले ये सोच के चल रहे हैं कि हमारा रिसिप्ट कम आने वाली है. जैसे इसमें कहा था ना, ये नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आना चाहिए, तभी ये डेफिसिट की बात कहेगा. ये पॉजिटिव नहीं आ सकता. पॉजिटिव आएगा तो ये डेफिसिट वर्ड नहीं लगेगा यहाँ पे. हम घाटे की बात कर रहे हैं. घाटे का फॉर्मूला ये निकाल रहे हैं कि रिसिप्ट्स कम है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, और जब एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा उनके बीच का डिफरेंस क्या होगा? द नेट बोरिंग्स. आपने बोरो कहां से करना है. सो दिस deficit tells us that how much borrowings of a government that need to be cured to the balance of payment or the budget. बजट को बराबर करने के लिए कितना दोनों के बीच का अंतर है वो हमें कहीं ना कहीं से बोरो करना पड़ेगा. और बोरो कहाँ से करेंगे? दैट वी हैव ऑल्टरनेटिव्स. चाहे लोन लें, चाहे कंपनी से लोन लें, कंट्री से लोन लें, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लें, वर्ल्ड बैंक से लें, या किसी RBI से लें. लोन कहाँ से लेना बात की बात है. क्वेश्चन ये है कि दोनों के बीच का अंतर हमारा नेट बोरिंग्स के बारे में बता रहे हैं कि हमें लोन कितना लेना है. सॉरी, लेट्स गो फॉर इसके बारे में एक और चीज़. फिस्कल डेफिसिट इज रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड नॉन डेट कैपिटल एक्सपेंडिचर. चलो इसको छोड़ दो. सो इट टेल्स अबाउट नेट बोरिंग्स. नेट बोरिंग्स अब ग्रॉस, अब एक चीज के साथ में लिख लीजिए, नेक्स्ट इसके साथ लिखिए, ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट. टोटल घाटा कितना आया? ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू, ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू net borrowings at home, net borrowings at home plus borrowings from RBI, from home, net borrowings from RBI plus borrowings from abroad. 3 तरह की borrowings हो गई. हमने वहां लिखा ना, एक तो घर से लेनी है from home, from second is from RBI and third one is talking from abroad. जो घर से लेनी है उसका मतलब क्या है? पब्लिक से, गवर्नमेंट से भी नहीं ले रहे, लोगों से ले रहे हैं, अपनी एसेट्स, अब कोई वो ये ट्रेजरी बिल्स बेच के, शेयर्स बेच के, तो दैट इज गेटिंग फ्रॉम द पीपल ओनली, फ्रॉम द होम ओनली, देन फ्रॉम RBI, देन फ्रॉम अब्रॉड. तो हमारा टोटल ग्रॉस, ये फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला बीच में लिख के, 4 में से एक ऑप्शन फॉर्मूला ही होता है कि जो हमारी बोरिंग्स हैं, ग्रॉस जो बोरिंग्स होती हैं, वो फिस्कल डेफिसिट होता है. वो क्या होता है? वो तीनों के बीच का डिफरेंस होता है. इन तीनों को मिला के इसके बीच में आता है वो डिफरेंस. तो ये जो 100 रुपीज है ना, वो 100 रुपीज कहाँ से आए हैं? नेट बोरिंग्स फ्रॉम अब्रॉड, नेट बोरिंग्स फ्रॉम RBI एंड नेट बोरिंग्स फ्रॉम होम. ये 3 क्या है? ये कौन है? ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट. ये जो है हमारी बोरिंग्स है. गेटिंग? सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. दोनों के बीच का अंतर बोरिंग्स होता है. Yeah, that's it. This is the third point that we have to discuss. जब हम इस चीज को लिखते हैं ना, इसके बारे में लिखते हैं थोड़ा सा, तो आप जो आपको चीज समझ में आ रही होती है ना, जरूरी नहीं है कि जो मैंने आपको स्पेसिफिक लाइन लिखवाई आपने वो लिख ली. वो लाइन तो है टू अंडरस्टैंड द थॉट व्हेन इट इज कमिंग टू पेपर, कि वैसी की वैसी लाइन कहीं पेपर में ना आ जाए तो आपको पता होनी चाहिए. लेकिन आपको जो इसको देख के चीज को समझ में आता है, आप उसको अपनी लैंग्वेज में बढ़ गया, घट गया, कैसे हो गया, वो अपने साथ साथ लिखा कीजिए, ताकि जब उसको बाद में पढ़ो तो आपको समझ आ जाए कि वो कहना क्या चाह रहे थे उस टाइम पीरियड पे. गेटिंग? लास्ट वन इज प्राइमरी डेफिसिट. Primary deficits. The government fiscal deficits would have been if no burden on interest payment on the past loans.
दोनों के जो हमारे फिस्कल डेफिसिट्स हैं उसमें से अगर हम इंटरेस्ट रेट जो पेमेंट करनी है वो माइनस कर दें तो हमारे प्राइमरी डेफिसिट्स आएंगे। फिस्कल डेफिसिट्स सारे घाटे जो हैं उसमें से अगर हम इंटरेस्ट रेट पेमेंट माइनस कर दें, इसका मतलब इस वाले देखो इससे ये वाला पॉइंट बना, ठीक है, फिस्कल डेफिसिट से प्राइमरी डेफिसिट बना। सो ये बताता है इफ यू हैव अ फिस्कल डेफिसिट्स एंड यू माइनस द इंटरेस्ट पेमेंट out of it you can get a primary deficit from that. इसका अगर इनके बीच में अंतर नहीं आया इसका मतलब आपने कोई पिछला रेट ऑफ इंटरेस्ट पे नहीं करना था। अगर इनके बीच में डिफरेंस आ रहा है इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना था। ये भी क्या है आपका एक तरह से एक्सपेंडिचर है। कौन सा एक्सपेंडिचर? which is not creating any asset, which is not decreasing any liability. आपकी प्राइमरी मनी वापस करना, पेमेंट वापस करना, प्रिंसिपल अमाउंट वापस करना आपका लायबिलिटी को कम करता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी लायबिलिटी को कम नहीं कर रहा, वो तो खड़ी की खड़ी है, प्रिंसिपल अमाउंट तो खड़ा ही खड़ा है। सो दैट्स व्हाई इट हैज राइट डाउन अ लाइन गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट would have been if primary deficits होना चाहिए, चलो fiscal deficits would have been if no burden on interest payment on the past loans, deficit negative means entire fiscal deficit it may be plugged by borrowing from RBI, may be plugged by borrowing from RBI and not from banks. In this case, RBI print fresh currency to finance borrowing of the government, to finance borrowings of the government. इसका मतलब जो गवर्नमेंट को जो घाटा हो रहा है ना वो कौन फाइनेंस कर रहा है? आरबीआई फाइनेंस करेगी। और आरबीआई वो पैसा कहाँ से लाएगी? नई करेंसी को इशू करके मार्केट में लेके आती है। तो वो जो बोरिंग मोनेटाइज्ड बोरिंग डेफिसिट क्या हो गया? घाटा हो गया, उसको डीमोनेटाइज्ड कर दिया, है ना? डीमोनेटाइज नहीं किया, मोनेटाइज्ड कर दिया। तो हमने इसमें नया पैसा हम लेकर आए और उस डेफिसिट्स को पूरा किया, घाटे को पूरा किया। इसका इफेक्ट इन्फ्लेशनरी प्रेशर आएगा, है ना? क्योंकि ज़्यादा पैसा मार्केट में आएगा तो आपको घाटा, आपका नुकसान बढ़ना शुरू हो जाएगा, प्राइसेस बढ़ने शुरू हो जाएंगे। बट हम अभी के लिए अपने नुकसान को ठीक करने के लिए क्या कर रहे हैं? बाहर से नहीं पैसा लेके आ रहे, आरबीआई को कहते हैं आप अपना पैसा दे दो। आरबीआई कहाँ से लाता है? नई करेंसी छापता और मार्केट में पैसा ले आता है। सो फॉर्मूला इज मोनेटाइज्ड डेफिसिट इज इक्वल्स टू नेट इंक्रीज इन द आरबीआई क्रेडिट टू द गवर्नमेंट, दैट इज इक्वल्स टू नेट इंक्रीज in the RBI credit, net increase into the RBI credit to the government. इसका मतलब तो whatever is the excess money that is being created by the RBI, net increase in the RBI credit to the government. कितना एक्स्ट्रा क्रेडिट RBI क्रिएट करेगा वो हमारा डीमोनेटाइज्ड डेफिसिट है। उतने ही पैसे हमें लाने पड़ेंगे करेंसी के जितने हमारा घाटा आया। तो मोनेटाइज्ड घाटा जो है, मोनेटाइज्ड डेफिसिट जो है, दैट इज इक्वल टू नेट इंक्रीज इन द आरबीआई क्रेडिट एंड दैट इज डन थ्रू द डेफिसिट फाइनेंसिंग। इसको क्या बोलते हैं? इशू ऑफ न्यू करेंसी, इसको बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट को फाइनेंस करना, डेफिसिट फाइनेंसिंग इज कॉल्ड
घाटे को दोबारा से फाइनेंस करना, घाटे को फाइनेंस करना। और घाटे को फाइनेंस कैसे कर रहे हो, कौन फाइनेंस कर रहा है, आरबीआई कर रहा है, किससे कर रहा है, नई करेंसी लाके कर रहा है, ठीक है। तो अपने घर में ही उस चीज को ठीक कर लिया आपने, नई करेंसी ले आए और उसके जो घाटे थे उसको पूरा कर दिया, दैट इज कॉल्ड डेफिसिट फाइनेंसिंग। डन। द लास्ट वन इज बजटरी डेफिसिट। Budgetary deficits. The sum of net increase in floating debt of the government, and new withdrawal of their cash balances. Net increase in the floating debts and the government and the new withdrawal of the cash balance. गवर्नमेंट के घाटे जो है जब वो और इंक्रीज होते हैं, फ्लोटिंग डेट्स बढ़ जाते हैं, तो गवर्नमेंट हैज टू टेक इट लोन फ्रॉम अदर साइड्स, बाहर से लोन लेने पड़ते हैं, एंड दैट विल इंक्रीज टू द विड्रॉल ऑफ कैश बैलेंसेस। जो हमने कैश बैलेंसेस रखे हैं उसमें से हम विड्रॉल कर करके पैसे को लेना शुरू करते हैं, जो लोन्स ले रखे हैं उसमें से कैश विड्रॉल करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो वो वाला जो पुराने वाला था मोनेटाइज, वो अपने आप ही करा, ये हमने बाहर से कराया। मतलब जो अगर डेफिसिट हो गया तो उसको हमने बजट का ही नुकसान मान लिया और उसको मोनेटाइज करने के लिए अपने कैश बैलेंसेस को निकालना शुरू कर दिया। हमने अपनी जो फ्लोटिंग डेब्ट्स है उनको बढ़ा दिया कि लोन ले लेते हैं, बाहर से ले लेते हैं, एंड वी विल जस्ट लाइक टू बैलेंस द डेफिसिट। वहाँ पे बाहर से पैसे नहीं लिए, खुद से करें, क्योंकि जब इससे ऊपर का पॉइंट हमने डिस्कस किया, हमने कहा 3 तरह से लोन लेना है, या तो घर से, हमसे, या फिर आरबीआई से या बाहर से। तो हमसे तो लिया नहीं, वो लेते हैं गवर्नमेंट इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी में। सेकंड वाले में आरबीआई से लिया, आरबीआई ने क्या, खुद पैसे बना लिए। थर्ड वाला कहाँ से लिया, फ्लोटिंग डेब्ट्स को बढ़ा दिया, अपने लोन्स को बढ़ा दिया, अपने कैश विड्रॉल्स को बढ़ा दिया। तो 2 चीजें बेसिकली, एक तो नेट इंक्रीज इन फ्लोटिंग डेब्ट्स और दूसरा जो हमने किया इंक्रीज इन कैश बैलेंसेस। दोनों में से इंक्रीज करके पैसा बाहर से निकाल के आए और ये हमारा डेफिसिट्स को कंप्लीट कर दिया। So these are the types of your deficits. Hope you understand. Bit of things we have done regarding the basic structure. Then after we discuss उन structure में अभी गड़बड़ आती है तो 3 तरीके से होगी, surplus, deficits and balance. फिर वो बैलेंस तो है तो ओके है, सरप्लस है तब भी ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ है, डेफिसिट की। तो हमने 5 तरह के डेफिसिट्स की बात की। First deficit was revenue deficits. Revenue deficit stands for revenue receipts minus revenue expenditure. Second is effective revenue. It means what should be deducted from the deficits? Grants to the state for capital assets. Then we discuss about हमारा fiscal deficit. Fiscal deficit is total receipts minus total expenditure. थर्ड वन इज, और उसके बीच का डिफरेंस क्या होगा, द नेट बोरोइंग्स। जितना उनके बीच का अंतर रह जाएगा वो हमें कहीं ना कहीं से बोरो करना पड़ेगा। वो कंट्री की बोरोइंग्स की लायबिलिटीज को दिखाता है। लास्ट वी डिस्कस जो प्राइमरी डेफिसिट फिस्कल डेफिसिट के साथ ही बन के आता है। फिस्कल डेफिसिट में से जब रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर दिया जाता है तो हमारा प्राइमरी डेफिसिट, तो पहला वाला सेकंड से रिलेटेड करता है, थर्ड वाला फोर्थ से रिलेट करता है। अब जब वो बोरिंग्स का डिफरेंस आया तो वो 2 तरीके से ठीक होता था। पहला मॉनेटाइज्ड डेफिसिट व्हिच इज बीइंग क्रिएटिंग अ मनी थ्रू आउट द इकोनॉमी बाय इशूइंग ऑफ न्यू करेंसी थ्रू द हेल्प ऑफ आरबीआई। इट मींस यू आर टेकिंग अ कैश फ्रॉम द you are taking borrowings from the RBI rather than the banks or the normal public. तो आपने इशू करेंसी करके मोनेटाइज कर दिया, उसका नुकसान हो जाएगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा, दैट इज अ सेकंड रिस्क इशू। थर्ड वन क्या था, हम खुद नहीं कर रहे, बाहर से लेके आते हैं, कैश बैलेंसेस को बढ़ा देते हैं और नेट डेट फ्लोटिंग्स को बढ़ा देते हैं। तो यहाँ तक हमारे डेफिसिट्स के टाइप्स भी कंप्लीट हो गए। अदरवाइज इसके बाद हमारे पास जो पार्ट है टाइप्स ऑफ बजटिंग है। जब बजट बनाते हैं तो कितनी तरह के बजट्स को फॉर्मुलाइज किया जाता है। फिर हम आएंगे जब ये सारे डेफिसिट आ गए, बजट भी बनाकर देख लिए, ये जो सारे घाटे हैं उनको मान भी लिया, एक्सेप्ट भी कर लिया, हर साल
उसके लिए कोई प्लानिंग तो करनी पड़ेगी ना। कौन बनाएगा प्लानिंग? कैसे बनाई जाएगी एक कोई ऐसी मैनेजमेंट, कोई ऐसी पॉलिसी, कोई ऐसा फ्रेमवर्क जो आपके हर साल के घाटे को, प्राइमरी घाटे को, इंटरेस्ट रेट के घाटे को, मॉनेटरी घाटे को, फिस्कल घाटे को एक मैनेज करके टारगेट देगा। जो जैसे हम बजट में, जैसे हम 5 ईयर प्लान में करते हैं, क्या करते हैं, इतना पैसा है 5 साल में कहाँ खर्चना है, प्लान कर रहे हैं ना। हमारे पास हमने अनएम्प्लॉयमेंट के लिए इतने लोग हैं, उनको कितना पैसा खर्च करना है। हमने बैलेंस ऑफ ट्रेड में किया कि टोटल खर्च कितने इंपोर्ट करने हैं, कितने एक्सपोर्ट करने हैं, कितना लोन मंगाना है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कितना FII करना है, कितना पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करना है। हमने उसके मैनेजमेंट किए ना। सेम एज वी हैव टू टेक अ मैनेजमेंट रिगार्डिंग टू द बजट। तो उसके लिए हम FRBM हमने एक बोर्ड बनाया है रिकंस्ट्रक्शन, जो हमारे को फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने के लिए सिखाता है दैट हाउ मच यू हैव टू इन्वेस्ट एंड हाउ यू हैव टू स्पेंड आउट योर मनी। Are you getting it? So this is the part of your third part in which we will discuss about the budgeting types and the budgeting your budgeting management. बजट के जो नुकसान आएंगे उसमें मैनेजमेंट कौन करेगा, वो कब स्टार्ट हुआ, फिर उसमें रिफाइनमेंट आई है। हर चीज में आ रही है रिफाइनमेंट्स, यू नो। जब भी हम कोई पॉलिसी की बात करते हैं, पहले ऐसे थी, आज बदल के ऐसे हो गए। सो विल टॉक अबाउट हाउ द टाइम इट इज गोइंग टू चेंज। So we'll talk about the frameworks changing into the monetary policy and fiscal policy management. Done? That would be the last part of this thing. You can have a 2-3 minutes to read up the topic, and then we will discuss a bit of the point and we'll wind up the class. Have. In the meanwhile, we will talk about the same thing regarding the 2023-24 budget, क्योंकि वो इसका करंट है, ये इसका स्टैटिक पार्ट है ना। अब हम इसका डायनामिक भी करेंगे थोड़ा सा, जिसमें हम लोग ये बात करेंगे कि 2023-24 के बजट में प्राइमरी डेफिसिट का टारगेट क्या रखा, फिस्कल डेफिसिट का टारगेट क्या रखा, एक्सपेंडिचर कहाँ किया गया, इनकम कहाँ से आई, टैक्स इनकम कितनी थी, नॉन टैक्स इनकम कितनी थी। तो दैट इज द स्ट्रक्चर दैट इज फिक्स्ड फॉर दिस ईयर ओनली। ये तो हमारा प्रीवियस हिस्ट्री है और ऑब्जेक्टिव है टॉपिक के। जो अभी हम करेंगे वो हम अब करंट की बात करेंगे।
Okay. A bit of we can discuss about the current budget. A few concepts we are giving you the data. Then after we will talk about the basic part of budget again. We are just giving you whatever we have done today only. मैं अभी पूरा बजट नहीं डिस्कस करूंगी, मैं सिर्फ आपसे वो चीजें डिस्कस करूंगी, वो डेटा डिस्कस करूंगी जो आज हमने करंट में डिस्कस कर लिया. लाइक फिस्कल डेफिसिट बात कर ली, डायरेक्ट इनकम टैक्स इनकम की बात कर ली, वो डेटा हम बात करते हैं. सो वी सेड दैट ओनली 6% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज गिविंग द टैक्सेस. तो टैक्स का जो परसेंटेज है बाय द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज 6%. वो कौन सी वाली? हमारी 6% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया पेज अ टैक्सेस. दैट इज अ टैक्स ऑफ जीडीपी रेशियो इज 11% ऑफ सेंट्रल जो है. सेंट्रल जीडीपी का 11% जो हम लोग है टैक्स के रूप में, इनकम के रूप में लेना चाहते हैं, जबकि 6% हम रिसीव कर रहे हैं इंडियन पॉपुलेशन से. टैक्स रिवेन्यू, अभी देखो टैक्स हमने रिवेन्यू रिसिप्ट की बात की. रिवेन्यू रिसिप्ट क्या था? कहां से पैसा आ रहा है, टैक्स से और नॉन टैक्स से. सो दे सेड दैट टैक्स के अंदर क्या था? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस. सो वी सेड दैट 30 लाख करोड़ रुपीस इज कमिंग फ्रॉम टैक्स रिवेन्यू. 30 lakh crore, this is a present data on the this budget of 23-24. 30 lakh crore rupees जो है हमारा टैक्स रिवेन्यू है, जिसमें से डायरेक्ट टैक्स जो है वो 52% है और इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो 48% है. 52% ऑफ 30 करोड़. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इस 30 करोड़ का टोटल में से 52% डायरेक्ट पैसा आ रहा है, डायरेक्ट टैक्स देके, और 42% इनडायरेक्ट टैक्स में से पैसा आ रहा है. इसी तरह गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 42 या 48 ना, तभी 100 बनेगा ना. 52 एंड 48 है ना. सेकेंड इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. अब गवर्नमेंट का खर्चा कहां पे हो रहा है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज 15% ऑफ जीडीपी. जीडीपी का 15% गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, जिसमें से कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो 3% ऑफ जीडीपी है. कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो 3% ऑफ जीडीपी है. एक्सपेंडिचर ऑन जीडीपी, एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडीज, टोटल पैसे में से जो सब्सिडीज पे खर्चा कर रही है गवर्नमेंट, वो है 2% ऑफ जीडीपी. टोटल जीडीपी का 2% हम खर्च कर रहे हैं सब्सिडीज देने में. एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडीज इज 2% ऑफ जीडीपी. कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो 3% है. और जो सबसे बड़ी जीडीपी का जो खर्चा है, जैसे हमने कहा कि सब्सिडीज में देना पड़ता है, उसमें से हम 2 तरह की सब्सिडीज देते हैं. कौन कौन सी? फूड सब्सिडी एंड फर्टिलाइजर सब्सिडी. फूड सब्सिडी और फर्टिलाइजर सब्सिडी हमारी 2% जीडीपी, 2% सब्सिडीज के अंडर आती है. कि अगर आपको पता करना पड़े कि टोटल सब्सिडीज कहाँ दी जाती हैं, तो वो 2 जगह पे दी जाती हैं, फूड सब्सिडी एंड फर्टिलाइजर सब्सिडी. जो फूड सब्सिडी है 2 लाख करोड़ रुपए है, और जो हमारी फर्टिलाइजर सब्सिडी है 1.75 लाख करोड़, और वो जो फूड सब्सिडी है वो 2 लाख करोड़ रुपया है हमारा टोटल 2% का. ठीक है. बजट डेफिसिट, टोटल डेफिसिट जो हमने अभी बात की लास्ट में, बजट डेफिसिट जो हमने टारगेट किया है 2024 के लिए 4.5% फिस्कल डेफिसिट हमने टारगेट किया है. 4.5% फिस्कल डेफिसिट और 2.9% रिवेन्यू डेफिसिट. 2.9% रिवेन्यू डेफिसिट. और स्टेट फिस्कल डेफिसिट इज 3.5% ऑफ GSDP, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. स्टेट का डेफिसिट स्टेट में से निकल के आएगा, हमारा डेफिसिट जीडीपी में से निकल के आएगा. आर यू गेटिंग द प्रेफरेंस? हम जो भी अपने बजटरी डेफिसिट की बात करें तो हम कह रहे हैं जीडीपी का इतना %. जब स्टेट का डेफिसिट की बात करें तो GSDP की बात करें, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और हमारा क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. आर यू गेटिंग द डिफरेंस? स्टेट फिस्कल डेफिसिट इज 3.5% ऑफ GSDP. 3.5% अपनी ग्रॉस का आप डेफिसिट तक बेयर कर सकते हो, टारगेट है आपका.
What you will achieve, that is supposed to be done into the 2020-25. 2 साल के बजट के बाद ही हमें पता चलेगा कि हम क्या टारगेट्स कर रहे हैं. एंड जब हम FRGM की बात करेंगे उसमें भी हम टारगेट्स लेते हैं हर साल. हम इकोनॉमी को ये डिसाइड कराने के लिए बताते हैं कि आप बेसिकली वो बनाए क्यों जाता है FRGM, दैट इज फॉर टू कंट्रोल एंड हैव अ ट्रांसपेरेंट प्रोसेस कि आपने एक साल में जो भी खर्चे करने हैं, जो टारगेट्स रखने हैं, उसको प्रॉपरली आप ट्रांसपेरेंटली मैनेज कर सको. कोई रूल रेगुलेशन हो आपके ऊपर कि ये नहीं डेफिसिट बढ़ा रहे हो तो बढ़ाते रहो 4-4 साल तक के लिए. तो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने आप को मैनेज करना पड़ेगा कि यू कैन नॉट गो बियॉन्ड दीज 4% ऑफ डेफिसिट्स. कुछ भी करके अपने घाटे को बचाओ, अपने डेफिसिट्स को कम करो, क्योंकि अगर डेफिसिट्स होंगे तो बोरो करना पड़ेगा. बोरो करना पड़ेगा तो हमसे करोगे या बाहर से लेके आओगे. बाहर से लेके आओगे तो हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा. फिस्कल प्राइमरी डेफिसिट बढ़ता जाएगा. तो एक चीज अगर ठीक कर देते हो तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी. तो फिस्कल डेफिसिट्स को कंट्रोल करना बड़ा इंपॉर्टेंट है. फिस्कल के अंडर ही फिर प्राइमरी डेफिसिट्स भी आ गए, हमारे रिवेन्यू डेफिसिट्स भी आ गए. तो समवेयर समहाउ वी नॉट नीड टू मैनेज द डेफिसिट्स. दैट्स व्हाई टू मैनेज, टू कंट्रोल, दैट वी हैव क्रिएटेड RBFM. वो हम बात करेंगे कल, व्हाट इज दैट एंड हाउ वी हैव टू डन विद दिस RBFM. And before that we will talk about a bit of the types of budgeting. कि गवर्नमेंट जब बजट बनाती है तो जेंडर के लिए अलग बजट बनाती है. गवर्नमेंट जब बजट बनाती है तो जीरो बजटिंग बनाती है. गवर्नमेंट जब बजट बनाती है तो आउटले बजट्स बनाती है. उसको पता होता है कि पीछे अब देखो आज नुकसान है, सिंपल सी बात है. एज वी यूज्ड टू टॉक अबाउट इन द मिड ऑफ द ईयर्स कि GST से इतना इनकम मिल रहा है कि वो हर महीने एनुअल इनकम ही करोड़ों में आ रही है. GST कौन सी इनकम है? डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स इनकम है, टोटल इनकम है. टोटल इनकम रिवेन्यू रिसिप्ट है. तो रिवेन्यू रिसिप्ट तो बढ़ गया ना जब आपकी इनकम बढ़ रही है. तो इफ देयर इज अ सरप्लस, रिसिप्ट बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा? सरप्लस बढ़ेगा. ठीक है, आपका सरप्लस बढ़ जाएगा. उस सरप्लस को अगर आप इस साल सरप्लस आया, मेरे पास 5 लाख रुपए बच गया, तो जब मैं अगली बार बजट बनाऊं तो मेरे पास तो 5 लाख पहले का पड़ा है, तो वो मेरी इनकम तो पहले ही बन गई. तो जब हम कई बार बजट बनाते हैं तो हम जीरो बेस बजटिंग करते हैं कि पीछे कुछ नहीं बचा, ना नुकसान को लेके चलना ना फायदे को लेके चलना. आज से पैसे बताओ कितने आएंगे और कितने खर्चेंगे. वो जीरो बेस बजटिंग है. हम पिछले कोई भी लेखा जोखा ले ही नहीं रहे, पिछला कुछ नहीं मान रहे. जबकि कुछ जब हम दूसरे टाइप के बजट बनाते हैं तो उसमें कहते हैं नहीं पिछले नुकसान भी तो अभी चलते रहेंगे ना. क्यों? रेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट तो चलती रहेगी ना. वो चलती रहेगी तो प्राइमरी डेफिसिट तो वैसे का वैसे ही खड़ा रहेगा ना. तो दैट्स व्हाई इन फ्यू बजट्स वी यूज्ड टू टेक द प्रीवियस कंटेंट एज सच. कुछ में हम प्रीवियस को जीरो कर देते हैं, कुछ नहीं बचा, ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ. आज कितनी इनकम कितना एक्सपेंडिचर. जेंडर बजटिंग में हम बात ही कहते हैं कि टोटल बजट में फीमेल का कितना हिस्सा मिल रहा है, फीमेल के एम्पावरमेंट को क्या मिल रहा है, फीमेल के डेवलपमेंट के लिए क्या मिल रहा है. पार्लियामेंट्स में जो हमारी मिनिस्ट्रीज बनाई जाती है, डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं, उनसे पूछा जाता है कि आपको जो खर्चा करने के लिए दिया था वो एसेट क्रिएट करने के, उसका फीमेल पे कितना हिस्सा दिया, उस पर कितना खर्चा किया. सो फीमेल बजटिंग इज डिफरेंट, जेंडर इज सेम. Okay, so that is again the part of your budgeting. So these are the types, few more parts are there, outlay भी है 1-2, तो that will discuss about how and types of budgeting. आपको इस टॉपिक में मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो जो हमने चार्ट बनाया वो चीज़ समझ में आनी चाहिए. एसेट्स क्रिएशन, लायबिलिटी रिडक्शन, वो it does not, it does. Right hand side it does, left hand side does not. Right hand side is your revenue, left hand side is your revenue, right hand side is your capital. And दोनों के बीच में income, expenditure, income, expenditure. Income के आगे 2 पार्ट, expenditure के आगे 2 पार्ट. That picture should be clear in the front of you. Second important चीज, 6 तरह के deficits. Revenue deficit, effective revenue deficit, fiscal deficit, primary deficit, monetized deficit, बजटरी डेफिसिट. ये 6 तरह के डेफिसिट और उनके फॉर्मूला. उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारा FRG, उसको मैनेज कैसे करना, कंट्रोल कैसे करना. ये इस टॉपिक का बेसिक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. ठीक है, इसमें से 1-2 क्वेश्चन फॉर श्योर. अगर ज़्यादा होगा तो कुछ करंट का डाटा, 4 पॉइंट्स हैं तो 2 डाटा करंट डाल दिए, 2 पुराने डाल दिए, तो वो आपको मिला मिलू के 1-2 क्वेश्चन तो आपको यहाँ से मिल जाएंगे. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर दिस टुडे ओनली. देन विल डिस्कस टुमारो. विल कंटिन्यू विद दिस टॉपिक.
when we are expecting a new next text? Yeah, we are done with the poverty. We are done with the HDI. What else is the new topic? What you say and when you suggest the date? Inflation. We have done inflation very well, I believe. है ना? It's on your tips only. So we can go for an inflation test on next Friday. I'm giving you time. Yes. You can plan out easily. In the meanwhile, we will have more topics, isn't it? So Thursday or Friday, we can manage it. अभी मैं फाइनल नहीं कर रही हूँ कि थर्सडे है या फ्राइडे. वो पहले भी हो सकता है, वो बाद में भी हो सकता है. Because I know you people are very not trustworthy. People once kept from the tests. So maybe इसी सैटरडे हो जाए और मे भी हो सकता है नेक्स्ट सैटरडे. आई एम जस्ट गिविंग यू इंटीमेशन दैट विल गो फॉर अ नेक्स्ट टेस्ट इज रिगार्डिंग योर इन्फ्लेशन. ओके, तो इन्फ्लेशन प्रिपेयर करके रखिए सो दैट इट्स जस्ट लाइक आप जब छोटे छोटे टेस्ट देते हो ना तो इट क्रिएट्स एन कॉन्फिडेंस फॉर यू पीपल ओनली कि आपको अपना चेक हो जाता है कि मेरे को कितना टॉपिक आया है. हम रट्टे तो लगा रहे हैं लेकिन वो रट्टों का क्वेश्चन किसकी फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा. दैट इज इंपॉर्टेंट. टेस्ट को कभी स्किप नहीं करना चाहिए. एंड इफ यू आर वॉलंटरली स्किपिंग द टेस्ट इट मीन्स यू डोंट हैव कॉन्फिडेंस ऑन यू आर मेकिंग फूल ऑफ योरसेल्फ ओनली. आप अपने भी को बना रहे हो घर बैठ के, बना लो. Who cares? Nobody cares. We care for you. That's why we are saying go for a test. क्या होगा? किसने किसको गोली मार दी अगर आपने 5 नंबर लिए तो? क्या हुआ? We are not creating any list over there and we are pasting over there. No, we are not. We are just asking you to please go for test so that we can go ahead. When we were used to go into the classes and we got 2 or 3 marks ना, तो हमारे पास एक पेपर हाथ में नहीं दिया जाता था, ऐसे छोड़ दिया जाता था. जाओ उठाओ वहाँ से. You're not supposed to pick up the 5 नंबर लाए तो आपको हाथ में सम्मान के रूप में दिया जाएगा. अगर 2 नंबर 5 नंबर है ऐसे पेज छोड़ दिया जाता है, उठाओ वहाँ से. You don't deserve it. But we never do this ना. We said that okay 2 marks let's go for next time. कोई बात नहीं, फिर करते हैं. तो प्लीज तो बिट ऑफ कॉन्फिडेंस इज बिन बिल्डिंग. ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग ही है. अभी कोई हम यूपीएससी बैठ नहीं गए हैं. इट्स अ फर्स्ट अटेम्प्ट फॉर एवरीवन. लेट्स गो फॉर इट. ट्राई इट. 1 नहीं 2 नहीं 3. आपको तो पीछे पड़ना चाहिए. रोज टेस्ट लो 2-3 दिन के बाद ताकि आपकी रिवीजन हो. आप क्या करे जा रहे हो, इकट्ठा करते जा रहे हो. इकट्ठे करने का कोई मतलब नहीं है until unless you're not performing somewhere. You're not reading up again and again. You're coming up with some answers, isn't it? So go for it. We'll try in coming week. Thank you. See you. Bye.